you, Roshni, for introduction, and thank you everyone for joining today's रोशनी, webinar. धन्यवाद We इंट्रोडक्शन के will लिए। start with और आप सबका what धन्यवाद our आज webinar के is: community वेबिनार में जुड़ने conserved के लिए। areas and emerging area-based हम conservation सामुदायिक approaches. संरक्षित क्षेत्रों के ऊपर Across आज India, बातचीत करने वाले communities हैं। have पूरे been भारत caring में for forest, समुदाय अपने grassland, वनों, peatland, ग्रासलैंड्स, coast, चारागाहों, and marine वेटलैंड्स ecosystem और for कोस्टल generation. मरीन इकोसिस्टम्स Through their का knowledge, संरक्षण करते आए हैं traditions, अपने and ज्ञान, local governance पारंपरिक system, प्रथाओं के they माध्यम से have और played a vital स्थानीय role in प्रशासन के माध्यम protecting से। biodiversity and वो अपनी sustaining जैव the विविधता का landscape संरक्षण that करते they आए call हैं home. और पूरे भूदृश्य At का the same संरक्षण time, करते आए हैं। their लेकिन contributions उनका जो are not योगदान है adequately उसको reflected पूरी in तरह से mainstream मान्यता नहीं दी conservation गई है, policy, पहचाना planning, नहीं and गया है reporting. नीति में, As निर्माण में India या works रिपोर्टिंग towards में। implementing भारत KMGBF अब केएमजीबीएफ and को its लागू करने की National दिशा में आगे बढ़ रहा है Biodiversity और Strategy एनबीसैप and Action Plan, को भी लागू करना question चाहता of है, governance, rights, तो प्रशासन participation, का सवाल and उठता है। recognition becomes और increasingly बहुत जरूरी है important. कि सामुदायिक Community प्रयासों conserved को areas मान्यता and दी जाए। other emerging area-based conservation approaches offer valuable insights into how आप biodiversity देखेंगे कि conservation सामुदायिक संरक्षण can के जहां भी strengthen प्रयास हैं in वहां पे ways कई that नई चीजें सीखने को respect मिलती हैं community संरक्षण knowledge, के संबंध में। collective stewardship, और सामुदायिक and ज्ञान का local decision सम्मान, making, स्थानीय निर्णय प्रणाली while को सम्मान देना बहुत contributing जरूरी है। to global biodiversity framework targets such as Target वैश्विक 1 on जैव विविधता integrating फ्रेमवर्क spatial जो है planning, उसमें पहला Target टारगेट है 2 कि पूरे ecosystem भूदृश्य restoration, की योजना हो, Target 3 on पारिस्थितिकी तंत्र की area-based conservation को and the बेहतर बनाया जाए, 30 by 30 goal, Target 21 on ensuring the availability and use of knowledge, including traditional जरूरी है कि knowledge, जो उपलब्ध and ज्ञान है उसका Target उस तक 23 सबकी पहुंच हो और on उसका इस्तेमाल gender किया जाए equality संरक्षण के काम and में। जेंडर inclusive समानता participation और in समावेशी biodiversity भागीदारी हो efforts. जैव विविधता Today's प्रशासन में। webinar brings आज का together वेबिनार जो voices है from ground उसमें जमीनी स्तर की perspectives आवाजें हम लेके आ from रहे हैं, policy, नीति, research, and practice अध्ययन और to अभ्यास reflect के on स्तर these से। questions. आज हम इन सवालों पे We रिफ्लेक्ट करेंगे। will begin with the हम शुरू presentation करेंगे from community representative across सामुदायिक diverse प्रतिनिधियों से ecosystem of India. जो अपने This प्रेजेंट will be करेंगे अपने followed क्षेत्रों by के a panel जो प्रयास हैं discussion उसके बारे में। and उसके end बाद with a question and डिस्कशन होगा, answers. चर्चा होगी और उसके बाद सवाल जवाब का सत्र There होगा। will be 4 presentation, 4 one from प्रेजेंटेशंस होंगे Uttarakhand, आज, एक one from उत्तराखंड से, Nagaland, एक one नागालैंड से, from Gujarat. एक गुजरात से। Yeah, to get us started, it's my और pleasure शुरुआत to हम invite our करेंगे first speaker, अपने Ishant पहले प्रेजेंटर from Munshiyari, ईशांत से, Uttarakhand, जो to मुंशियारी share उत्तराखंड से हैं experiences of one panchayat. और वो वन Over to पंचायतों you, के अपने Ishant. अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे। धन्यवाद महेश। सबसे पहले नमस्ते सभी को। मेरा नाम ईशांत मेहरा है, मैं सरमौली में रहता हूँ और वर्तमान में मेरा परिवार वन पंचायत हकदार है, सरमौली जैती वन पंचायत। तो सबसे पहले हम शेयर करते हैं। हाँ जी, दिख रहा है आपको? अभी नहीं हुआ शेयर। हाँ जी, अभी दिख रहा है? हाँ, अनम्यूट करेंगे, स्लाइड शो में चले जाओ। यस, सही। और फ्रॉम बिगिनिंग। शाबाश। हाँ जी। तो सबसे पहले ये सरमौली जैती वन पंचायत कुमाऊं के सीमांत जिले पिथौरागढ़ तिब्बत नेपाल के बॉर्डर के एकदम करीब में 2330 मीटर पर स्थित है। यहाँ पे हमेशा बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखाई देती हैं। और यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो गोरी घाटी में 2200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से 64% वन पंचायत
के अधीन जमीन है जिसपे समुदाय अपना संरक्षण संवर्धन का काम करती है। और 4.5% खेती कृषि उपयुक्त भूमि है। बाकी 8% वन विभाग के अंतर्गत आता है। और मुनस्यारी में अभी 325 प्रकार की प्रजाति के पक्षियां पाई जाती हैं, जो उत्तराखंड में पाए जाने वाले पक्षियों का लगभग आधे से अधिक है। और ये एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित है IUCN के द्वारा। सरमूली जाति वन पंचायत में कॉनिफर और ओक प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं। अ, वन पंचायतों का इतिहास की यदि हम बात करें तो 1931 के समय ब्रिटिश राज के शासनकाल में समुदाय के संरक्षण के बाद ये अपने वर्तमान रूप में पुनर्स्थापित की गई थी। और मुनस्यारी में अभी वन पंचायत की बात करें, मुनस्यारी ब्लॉक में तो 209 वन पंचायतें कार्यरत हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो इसमें 12,000 वन पंचायतें अभी हैं। और सरमोली अ, वन पंचायत की स्थापना 1949 में हुई थी। यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों और आजीविका आधारित आजीविका को भी ध्यान में रख के इसका संरक्षण संवर्धन का काम किया जाता है। इसमें 34 हेक्टेयर कुल वन पंचायत का क्षेत्रफल है, जिसमें से 365 हकदार हैं। अभी मेन बात देखी जाए तो पहली नियमावली जब बनी थी तब 1931 में, तब गांव के समुदाय को मालिकाना हक था। धीरे धीरे वन पंचायतों में नियमावली में जैसे जैसे बदलाव आए, अब जो उसका कंट्रोल है वो वन विभाग के हाथों में केंद्रित किया जा रहा है। आ, शासन व्यवस्था में देखें हम तो यहाँ पे 2 राजस्व गांव को मिला के कुल 365 हकदार हैं। और ये संचायती भूमि का संरक्षण संवर्धन उपयोग करते हैं। जैसे आप नीचे ये गोल घेरे में देख सकते हैं, कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, वहाँ पे नीलामी चल रहा है और यहाँ पे मीटिंग। और यहाँ पे वन पंचायत से गाय के लिए घास चारा, सूखी लकड़ी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। इसमें वन विभाग के वीट गार्ड का उपस्थिति भी जरूरी है, पर यह अक्सर जब बजट का मामला होता है तभी आते हैं वन विभाग वाले। और जैसे समुदाय संरक्षित जो समुदाय मिलके संरक्षण करते हैं तो उसमें का श्रमदान किया जाता है और संरक्षण कोष उगाया जाता है, जिससे संरक्षण कोष से फिर से दोबारा से संरक्षण, दीवारबंदी, चौकीदारी, इन सब में पैसा लगाया जाता है। और आग आग बुझाना, जंगलों में वृक्षारोपण करना, चौकीदारी, दीवारबंदी, ये सब किया जाता है। यदि विशेष रूप से देखें तो पिछले 2 दशक में वन पंचायत को केंद्र मानकर होम स्टे का काम भी किया जा रहा है, जिसमें नेचर बर्ड गाइड, उच्च हिमालय ट्रैकिंग और प्रकृति केंद्र। और हम लोग एक नेचर कैफे भी चला रहे हैं, फॉरेस्ट कैफे। इसमें से जो आमदनी होती है उसका 2% वन पंचायत कोष में जमा किया जाता है। और जो विशेष उपलब्धियां रही हैं पिछले 8 दशकों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं वन पंचायतों में, लेकिन विशेष रूप से पिछले 25 सालों से लोकतांत्रिक प्रबंधन प्रणाली के को मद्देनजर रखते हुए वन पंचायत इसका संवर्धन और संरक्षण का काम अभी कर रही है, इसको संभाल रही है। यहाँ से हकदारों की मूलभूत जरूरतें, रोजमर्रा की जिंदगी का आज भी पूर्ति हो रही है। और फिर जो अभी वर्तमान में हमारे सामने चुनौतियां हैं वो मार्केटीकरण, अर्थव्यवस्था का, शहरीकरण का बदलता प्रभाव है। क्योंकि शहरीकरण के कारण लोग धीरे धीरे अपने ही वन पंचायतों से दूर हो रहे हैं, जिससे वो अपना मालिकाना हक खो रहे हैं। और वन पंचायतों सॉरी वन विभाग का हस्तक्षेप है जो उसके साथ साथ वन पंचायतों पे और अधिक मजबूती से पकड़ बन रहे हैं। और ठेकेदारी राज का भी इसमें हाथ है। जैसे अभी आप ये नीचे पे देख सकते हैं, ये न्यूज पेपर का एक फोटो मैंने आपको दिया है, जिसमें हमारे लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
यहाँ पे अभी पर्यटन के नाम पे जो संसाधनों का उपयोग है वो संसाधनों को निचोड़ रहे हैं, और वन पंचायतों में एक जो समुदाय के लिए बेसिकली उनके यूज के लिए था, जैसे उनको समुदाय का हक पहले बनता है पानी पे उन पे, तो उसको मोटर लगा के खींचा जा रहा है, और लकड़ियों के लिए जलाओ लकड़ी के रूप में ना करके बॉन फायर के रूप में यूज किया जा रहा है। तो संसाधनों के लिए भी लूट मची हुई है अभी। और यहाँ पे अभी मेनली देखे तो 3 इकाइयाँ वन पंचायत के प्रबंधन के लिए हैं, जिसमें से एक पारंपरिक वन पंचायत है, दूसरा जैव विविधता समिति, और तीसरा ग्राम पंचायतें हैं। लेकिन जिससे इन तीनों के बीच टकराव देखने को मिलता है, और हमें लगता है कि वन पंचायत की जो प्रबंधन प्रणाली है वो पारंपरिक वन पंचायतें ही रहनी चाहिए, जो कि सामुदायिक वन को संभाल के रखेगी। धन्यवाद। धन्यवाद ईशान और साथियों वन पंचायतों से। थैंक यू सो मच ईशान फॉर वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन एंड ईशांत, showing आपका us बहुत बहुत how धन्यवाद। to आपका बहुत panchayat सुंदर functioned. प्रेजेंटेशन था। Now we will move towards Nagaland and अब हम from नागालैंड there की तरफ Chinogi बढ़ते हैं, will share और चिनोगी about हमें her CCAs that she comes बताएंगे from. Chinogi, over to you. अपने सीसीएस के बारे में। Is it visible? Uh, give some time. Yeah, it is visible now. Good morning, everyone. I'm Chinogi H. Ken from आप सबको Kannada नमस्ते। Foundation. मेरा नाम We are चिनोगी a है। non-profit organization हम एक dedicated in नॉन प्रॉफिट conserving forests ऑर्गेनाइजेशन है and supporting जो वन forest-dependent संरक्षण के communities. ऊपर काम करते हैं। I work as the CCA Pole in charge for Nagaland, and today I'm pleased मैं to नागालैंड present the राज्य के CCA लिए profile इंचार्ज of हूँ, Tizu Valley Biodiversity Conservation Livelihood Network. And we also और have टीजू Auntie वैली Nogi, बायोडाइवर्सिटी who is कंजर्वेशन the एंड lead लाइवलीहुड coordinator नेटवर्क for TVBC LN. से हैं। So, TVBC LN is located in Zilipota district of Nagaland. It is jointly managed by 3 semi villages of Sukai, Gukei, and Kiviko. Together, these 3 villages shows that neighboring communities can work together for successful conservation. And you can see the image shown in this slide. It's area mark of the CCA signed by the chairman of TVBCL. And the conservation area जो संरक्षण covers प्रयास है 1,000 उसमें acre 1800 area हेक्टेयर on the Tizu क्षेत्र River. है कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया के The अंतर्गत। landscape includes blue mountains, लैंडस्केप dense में ब्लू subtropical माउंटेन्स forest, है and traditional और सब traditional ट्रॉपिकल village. It फॉरेस्ट और also serves झूम as an खेती important होती है। ecological corridor ये connected to बहुत the ही Satoy महत्वपूर्ण Range. इकोलॉजिकल The कॉरिडोर area है is जो सतोई रेंज significantly को rich कनेक्ट करता है। in biodiversity, supporting more than 222 bird species, over 225 species, 222 and several threatened wildlife such as चिड़ियों black की dragonbat, प्रजातियां हैं, Chinese pangolin, और वहाँ पे fishing काफी cattle, थ्रेटेंड वाइल्ड doves, लाइफ है, and ब्लिट्स unicorn. ट्रैगोपैन, चाइनीज And the picture पेंगोलिन, over here is और the 200 से livelihood ज्यादा image in Nagaland. बटरफ्लाई स्पीशीज हैं। Chinogi, I'm sorry to interrupt you. Can you speak little slower? Our translator needs to translate into Hindi also. Okay, sure. Sorry, yeah. So it's the CCA area. तो ये Hill हमारा 1 सीसीए is का क्षेत्र है। Kiviku village. पहला Hill 2 हिल is है Sukai किविकू village, विलेज, and Hill दूसरा हिल है 3 सुखाई विलेज, Gukei village. और So तीसरी हिल है वुकुई the विलेज Tizu के। Valley was established in the year 2014, and 2014 में response to इसको global हमने environmental स्थापित किया threats था such as कि बहुत deforestation, पारिस्थितिकीय uncontrolled खतरे हो गए hunting, थे, soil erosion, overfishing, and डिफोरेस्टेशन था, wildlife बहुत disappearance. शिकार हो रहा So था, to overcome मिट्टी these कट रही थी, challenges, फिशिंग the बहुत ज्यादा 3 हो रही थी, villages और formed वन्य a जीवों joint का भी CC शोषण management हो रहा था। committee, which later became the Tizu Valley Biodiversity Conservation Livelihood and served as the apex community institution for conservation and sustainable livelihoods. The community represents Simi tribe living in the 3 villages. The community कम्युनिटी consists में of around 1,000 सुमी approx ट्राइब है, 1,000 Sari people and 1600 2,000 लोग households. वहाँ रहते हैं। The community depends
और The 238 economy परिवार हैं depends on और मुख्य agriculture and काम वहाँ forest पे कृषि resources. है So और that's the वन संसाधनों के slide. आधारित अर्थव्यवस्था है। Um, One of its Tizi Valley's strength प्रशासन is का its governance. जो A ताकत है representative from वो all सामुदायिक villages participate in क्षेत्र पे decision making. The सामुदायिक governance नेतृत्व structure में जो includes प्रशासन है Gulbarga Village और Council तीनों गांवों Committee, के a प्रतिनिधि उसमें शामिल systematic हैं। committee, and बहुत ही village समावेशी development board. निर्णय Together, प्रणाली they है और ensure प्रभावकारी effective community planning, संरक्षण का transparent काम decision होता है। making, and active जो प्रमुख सदस्य community हैं participation. उसमें गांव के बूढ़े लोग हैं। The conservation has implemented several measures to protect the landscape, such क्या as प्रयास किए गए हैं regular संरक्षण के लिए patrolling, वो बता forest रही हैं। restoration through रेगुलर plantation पेट्रोलिंग and होती है, protection of निगरानी रखी tree जाती है spawning, banning और hunting, चौकीदारी की जाती prohibition है। of tree felling within the conservation वन area, संसाधनों को and रिस्टोर किया जाता है वनीकरण के preventing कार्यक्रमों से। destructive fishing practices. So these तो actions, has वहां पे significantly थोड़ी contributed मुश्किल in गलत protecting तरीके की natural मछली पकड़ने की conservation. प्रक्रियाएं आ गई थी, उसकी अब सुरक्षा के लिए काम किया जा In रहा है। recognition of its outstanding performance, the Tizu Valley has received India Biodiversity Award in the year 2018 in the इंडिया category of बायोडायवर्सिटी Sustainable अवार्ड मिला Use था of इनकी Biological कमेटी को। Resource Institution. Despite its achievement outcomes, they have showed they have helped the local communities like as और इस तरीके की Geoffrey जो entered as मान्यता forest मिलती है, जब guard रिकग्निशन मिलता for है locally संरक्षण के exploited प्रयासों buffers को, and तो saving समुदाय को Indian काफी wildlife ताकत faster. मिलती है, हिम्मत मिलती है अपना काम संरक्षण का जारी So रखने के लिए। despite its significant achievement, Tizu कई Valley हमारी meets several उपलब्धियां रही हैं, challenges. लेकिन उसके Firstly, बावजूद कुछ चुनौतियां भी हैं। tourism infrastructure एक तो पर्यटन का is जो here मूलभूत limited due to सुविधाएं हैं natural वो constraint. काफी सीमित So है। homestay and होम village स्टे nest और need to be developed to आगंतुकों के attract लिए more जो सुविधाएं tourists. हैं उसको Secondly, बेहतर there बनाने is की a lack जरूरत है। of business planning and बिजनेस marketing, प्लानिंग और due मार्केटिंग to अच्छी which नहीं है इस समय, daily stories, प्रमोशन बढ़िया opportunities, नहीं है and और income आर्थिक और reach तकनीकी locally सपोर्ट की भी communities. काफी कमी And another महसूस होती severe है। challenges is there is shortage of financial and technical support. समुदायों को So फंडिंग community की, needs प्रशिक्षण की require जरूरत है, farming, training, आजीविका and में सहयोग की capacity building to जरूरत है, strengthen the ऐसा बता रही है, sustainable livelihood. So addressing these ताकि challenges, सतत by supporting आजीविकाओं strong के आधार पे वो अपनी partnership जीवन and चला सके। consistent is essential to ensure a long term for TZ Valley. So ये मदद मिलेगी the तभी लंबे following समय तक slide संरक्षण प्रयास जारी रख shows पाएंगे। the rich biodiversity of TZ अब आप Valley. देख सकते हैं कितनी प्रचुर जैव विविधता है इनके क्षेत्र में, उसकी फोटोज दिखा रहे हैं। So this is the video capture using a camera trap installed by the community. कैमरा ट्रैप लगाया था समुदाय ने, उससे ये वीडियो लिया गया है। आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग प्रजाति की चिड़िए आ जा रहे हैं, पक्षी। Yes. Thank you. Thank you, Chinogi, for a very beautiful जिनोगी, presentation and आपका taking us धन्यवाद to इतने सुंदर Nagaland प्रेजेंटेशन and के लिए giving और time to share नागालैंड के experiences, अनुभव challenges, आपने and हमारे impact. साथ साझा किए। Now, I welcome to Hussain ji, who is अब from मैं Bani हुसैन जी को Grassland, Gujarat. आमंत्रित करता हूँ। I बन्नी request ग्रासलैंड Hussain गुजरात ji से हैं to present and और speak. उनसे Over to अनुरोध है you, कि वो Hussain अपना ji. Thank you. प्रेजेंटेशन करें। Sorry, Mahesh, to interrupt, but I think we'll have to cancel Hussein G's right now. He's not in the network zone. Okay. Maybe we can move to next presentation. So next presentation also, Mr. Mahendra will not join because of the internet issues on the field. So shall we start a panel discussion? तो अब हम पैनल डिस्कशन शुरू करेंगे क्योंकि अगले दो So thank प्रेजेंटर्स के you, पास अच्छा नेटवर्क नहीं है Ishant, इस and समय। thank you, Chinogi, for the ईशांत और beautiful चिनोगी को presentation that धन्यवाद उनके you guys सुंदर have given. प्रेजेंटेशंस के लिए। So now we will start with the अब हम panel discussion. पैनल डिस्कशन की शुरुआत So करेंगे। our first speaker is Mr. Aman पहले Singh ji, स्पीकर हमारे अमन सिंह जी हैं, who is a founder of Krapavis and जो pioneering कृपाविस के conservationist, whose work has फाउंडर been हैं। instrumental in documenting, reviving, उनके काम and में advocating for उन्होंने recognition of Rajasthan's Oran, Oran's राजस्थान sacred के place. A very, जो very ओरन है warm welcome to उनको you, मान्यता Aman ji. दिलाने के लिए Thank you काम किया for है। our
for अमन your जी का time to स्वागत है join us today. और आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाल के हमारे साथ आज जुड़े हैं। Aman ji, can you hear me? अमन जी अगर हमको सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करके अपना वीडियो ऑन कर ले। So, yes, yes. Yes. Yeah. So, thank you, Mahesh Bhai, for inviting this very important webinar. धन्यवाद इस वेबिनार में मुझे आमंत्रित करने के लिए। मेरी बातचीत आपने बहुत ही सोच समझ के रखी है। हम्म, जो अभी कुछ केस स्टडीज यहाँ पे प्रेजेंट हुई, उसी से जुड़ती हुई आगे भी थोड़े कुछ एग्जाम्पल, विशेषकर जो राजस्थान में हम लोग जो कृपावेश संस्था है ओरणों पर लेकर काम कर रही है, जी पिछले 3 दशक से जो कम्युनिटी के साथ डायरेक्टली उनके रेस्टोरेशन और मैनेजमेंट वाले एस्पेक्ट पे। जी दूसरा एक पहलू है जिस पर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें जीआईएस मैपिंग भी सम्मिलित है, जिसमें जी अभी तक हमने लगभग 1400 ओरणों का जीआईएस मैपिंग और कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल डायरेक्टरी तैयार की हैं। और तीसरा एस्पेक्ट है कि हमें लगता है कि जब तक हम चीज़ों को कहीं पॉलिसी लेवल तक नहीं ले जाते हैं तो वो फिर शायद कहीं दब जाती हैं। तो हमारा बहुत महत्वपूर्ण कृपाविश की काम की एक रणनीति रही है कि इनको पॉलिसी लेवल पर भी लीगल स्टेटस या उनके दूसरे जो एस्पेक्ट हैं, राइट्स हैं, उनको लेकर भी बातचीत की जाए। तो मैं बेसिकली ये सारी बातचीत को पहले कृपाविश का जो एक्सपीरियंस रहा है ओरणों के साथ पिछले 3 दशक का, हमने देखा कि जो ओरण है ये कोई एक छोटा सा भूभाग नहीं है। यदि आप राजस्थान के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से तुलना करके देखें तो ये लगभग 3.5 से 4% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। तो और राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा स्टेट है, उसके लिहाज से एक बहुत बड़ा एरिया है जो लगभग मैं तो जब हम लोग ये स्टडी कर रहे थे हम तो 6 लाख हेक्टेयर ही बोल रहे थे, लेकिन अभी सरकार उसको कुछ 6.5 लाख तक ले गई है, जिस पर मैं आगे बात करूंगा। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जो ये एक कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया जैसा समुदाय जिनको संरक्षित करते आए हैं, जहां पर लोगों की ओनरशिप बड़ी स्ट्रोंग रही है और जिसको हम इंक्लूसिव कंजर्वेशन या पार्टिसिपेशन बोलते हैं, वो ओरणों के इस काम में बहुत नजर आता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लोगों की लाइवलीहुड है, विशेषकर जो पैस्टरल कम्युनिटी है राजस्थान में, उनकी लाइवलीहुड डायरेक्टली इन ओरणों पर निर्भर है। तो जो हमारा अनुभव वो कहता है कि ये जो कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया जो ओरण हैं, वो सब मैनेज हो रहे हैं लोकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। लोगों की जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो गवर्निंग सिस्टम है और लाइवलीहुड, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि हमें इनको समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट ये भी आया कि इनको आज बल्कि राजस्थान में नहीं देश में भी बल्कि पूरी दुनिया में जो जो काम लोग कर रहे हैं वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं कि किस तरह से इनको एक लीगल रिकग्निशन मिले, क्या तरीके हों कि इनको लीगल फ्रेम में और लोगों की ओनरशिप और उसके साथ समझौता हुआ नहीं करते हुए भी। तो हमारे अपने अनुभव में कृपाविश के अनुभव को यदि मैं शेयर करूं तो हमने ये सबसे पहले सोचा कि यदि राजस्थान में इन ओरणों को लेकर कोई पॉलिसी बने तो शायद इनके प्रबंधन में कहीं महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और एक पॉलिसी बनी भी राजस्थान में। यदि 2010 करें की बात हम करें, जो सबसे पहले फॉरेस्ट पॉलिसी थी राजस्थान की, उसमें ओरणों को लेकर पूरा एक सेक्शन इंक्लूड किया गया था कि किस तरह से सरकार इन ओरणों को, बेसिकली उसमें 3 एस्पेक्ट थे कि इनका एक तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिमार्केशन होकर और इनका रिकॉर्ड निर्धारण हो, वहां पर जो लोकल कम्युनिटी हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल कम्युनिटी हैं या किसी नए स्वरूप में भी, उस तरह की विलेज इंस्टीट्यूशंस वहां पर हों। और तीसरा मुद्दा उसमें यह भी था कि इनके प्रबंधन को लेकर, इनके रेस्टोरेशन को लेकर कुछ फंड्स हों। तो वो एक पॉलिसी बनी थी जिसके मैं अभी उस सारे डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय नहीं है। शायद वो उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई,
या उस दिशा में ज्यादा सफलता नहीं मिली। तो फिर इस सारी चीजों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, और बहुत संक्षेप में कि जो 2000 सुप्रीम कोर्ट ने एक 18 दिसंबर 2024 को एक ऐतिहासिक, जिसको मैं ऐतिहासिक निर्णय बोलता हूं, ओरन और राजस्थान के ओरनों के संदर्भ में। और यदि ओरनों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि ये तो पूरे देश के जितने भी सेक्रेड ग्रोव्स हैं उनको लेकर ये एक डिसीजन हुआ जो महत्वपूर्ण मानता हूं। अभी हम यदि यूं भी देखें कि क्या इस निर्णय से क्या फर्क पड़ा है, कई बार के साथी सवाल पूछते हैं कि इस निर्णय आने से राजस्थान में, विशेषकर ओरनों में, किस तरह का लोगों का इनके प्रबंधन को लेकर, लोगों के राइट्स को लेकर और कंजर्वेशन को लेकर क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है या किस तरह से काम हो रहा है। तो यदि आप सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को देखेंगे तो उसमें एक स्टेट लेवल कमेटी का जिक्र किया गया, जैसे स्टेट ओरन कमेटी, वो एक फॉर्म हुई एज पर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के कारण, जिसमें 5 लोग हैं और मिस्टर श्री जितेंद्र राय गोयल जो उसके चेयर हैं, और हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज भी हैं। तो उनके उसमें एक चीज बहुत अच्छी हुई एक साल में, पिछले 1-2 साल में, कि ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में यदि मैं उनकी फिगर कोट करूं तो 41 जिले राजस्थान में अभी हैं। उनमें से लगभग 33 जिलों में एक तरह का डेटा कलेक्शन का काम इस कमेटी के माध्यम से हुआ है। एक बड़ी चीज ये है। दूसरी बड़ी चीज ये भी निकल के आई है कि हम तो अपने जो कृपाविश ये सारा डेटा कलेक्शन का काम कर रहा था, हम लगभग 6 लाख ही हेक्टेयर एस्टिमेशन मान रहे थे, लेकिन अभी जो ओरन कमेटी है स्टेट की, उसने लगभग 6.5 लाख हेक्टेयर्स का ऑलरेडी उनके पास डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी है। तो इस तरह से ये सब, और दूसरा एक और महत्वपूर्ण ये भी हुआ कि इसमें जो परंपरागत थे, जो ट्रेडिशनल इनको प्रबंधन के तरीके थे, यदि वो 1992 से पहले की यदि बात करें, 1992 में जब ये सारा लैंड सेटलमेंट के काम शुरू हुए, तो उस वक्त ओरनों का वहां से लेके उस वक्त क्या स्थिति थी, लोगों के क्या अधिकार थे, लैंड रिकॉर्ड्स क्या थे, उन सारी चीजों को भी अभी देखा जा रहा है। और फिर कुछ इसको नोटिफाई करने की अभी काम चल रहा है, जो भी वहां पर ओरन है, कुछ डीम्ड फॉरेस्ट में अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पर कम्युनिटी रिजर्व का भी प्रेजेंट हुआ, वो भी एक संभावना इसको लेकर देखी जा रही है। तो मुझे लगता है कि अभी अभी एक एक पॉलिसी लेवल पर भी, एक सरकारी लेवल पर भी काफी पहल हुई है। तो ये एक एक संक्षेप में कि ओरन किस तरह से। दूसरा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है जो जो हमारी इस कार्यशाला का भी विषय है, कि कैसे ये जो ओरन है ये KMGBPF में टारगेट में कहाँ किस तरह से फिट बैठते हैं। तो यदि हम देखें जो अभी कृपाविश का काम पिछले 2-3 दशक का, वो सारा कम्युनिटी लैंड रेस्टोरेशन है, और हमने लगभग 200 से ऊपर, केवल डॉक्यूमेंटेशन नहीं, लगभग 200 से ऊपर ओरनों का कंजर्वेशन रेस्टोरेशन का काम किया है, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से कम्युनिटी लैंड प्रोटेक्शन संभव है। और ये यदि हम इसको KMGBF के उसके हिसाब से देखें तो जो टारगेट नंबर 1 और 2 है, ये उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही नहीं, हमने इन ओरनों में बहुत तरह की वाटर बॉडीज, जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थी, उनके रेस्टोरेशन के काम किए हैं, जिनको हम लोग नाडी तालाब, है ना, जोहर, टांका, ये सारे जितने भी तरह के वाटर स्ट्रक्चर्स हैं, ये ओरनों में पाए जाते रहे हैं। क्योंकि ओरन, यहाँ के ओरन कोई छोटे नहीं है। आप लेकर 5 हेक्टेयर से और 25,000 हेक्टेयर, आप एक देखिएगा कितना बड़ा स्केल है। इतने बड़े स्केल पर यहाँ के ओरन हैं, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज भी हैं। तो कृपाविश ने इन वाटर बॉडीज को इन 200 ओरन में रेस्टोरेशन के काम किए हैं। और यही नहीं, दूसरा ये भी कि यदि हम एक तरह से देखें कि वॉलंटरी कम्युनिटी स्टुवर्डशिप की यदि हम बात करें, तो जो टारगेट 3 है 30 by 30,
कि हमें 2030 तक 30 का टारगेट अचीव करना है, एक्चुअली ये जो ओरण हैं ये बहुत फिट बैठते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये 4 से लगभग 3.5 से 4% ऑफ द स्टेट एरिया की बात कर रहा हूं। और ये सारे के सारे यदि इस जितने भी ये सीसीएज हैं कहीं ना कहीं ये एरिया बेस्ड कंजर्वेशन में या ओएशियम कैटेगरी में जाते हैं, तो 3 से 4% जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कंजर्व्ड एरिया है, वो बढ़ जाएगा। तो एक ये बहुत ही हाई पोटेंशियल है उस दृष्टि से जो टारगेट 3 है। यदि हम टारगेट 21 की भी बात करें तो जो लोगों का अपना एक यहाँ पर ट्रेडिशनल ज्ञान है या अडॉप्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस रही हैं लोगों की यहाँ पर, जो लोकली एक्सेप्टेड हैं, है ना, डिसेंट्रलाइज्ड हैं, और ये सब मिलके एक तरह से जो टारगेट 21 है उस दिशा में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तीसरा मुख्य चीज ये है कि महिलाओं की जो भागीदारी है ओरणों में, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली यदि ओरणों में हम देखें तो जो ज्यादातर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन, जिसमें केर, बैर, सांगरी, ये जो सारा कलेक्शन है ये वहां की महिलाएं करती हैं। तो उनकी लाइवलीहुड तो है ही निर्भर साथ साथ, लेकिन उनके कंजर्वेशन में अभी ठीक है कुछ कुछ पहले दिक्कतें थी, लेकिन कृपाविश ने एक चीज ये की है कि हम मिनिमम 33% जो हम ओरण समितिज बना रहे हैं गांव स्तर पर, जो सुप्रीम कोर्ट के फ्रेमवर्क के तहत भी है, लेकिन जो कृपाविश इस काम को बहुत पहले से भी कर रहा है कि हर गांव में समिति हो, तो मिनिमम 33% महिलाएं उस ओरण कमेटी में हो, ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से जो टारगेट 22 है उसको अचीव करने में हमें मदद करता है। इसी तरह से यदि हम टारगेट 23 की भी बात करें तो जो लोगों के अधिकार हैं कॉमन्स पर, विशेषकर कॉमन और नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और उनके जो उन लोगों को जो इंसेंटिव एक तरह से लंबे समय तक स्टूवर्डशिप, उनकी उनकी मलकियत, उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ओरण एक ऐसा एक एग्जाम्पल है जो टारगेट 3 में भी बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं एक तरह से यदि इस मुद्दे पर KMGBP के बारे में बताऊं तो ओरण जो ओवरऑल है वो कृपाविश का काम, वो केवल एक अल्टरनेटिव प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, बल्कि हम इसको मानते हैं कि ये एक कंप्लीमेंट्री अप्रोच है जो जो एक्सपेंड्स करता है कंजर्वेशंस को, और एक तरह से लिव्ड इन लैंडस्केप हैं, एक लाइव लैंडस्केप है जो जिनको वहां की कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती हुई है। दूसरा जो इनका रिकग्नाइजेशन की, जैसे मैंने अभी बात की कि थ्रू सुप्रीम कोर्ट ये एक बड़ा निर्णय हुआ है, उसके तहत कम्युनिटी के अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रांगली उसमें कहा है कि जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं उनके अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए, और वो उसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि ओरणों के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर भी KMGPF इंश्योर करता है कि इकोलॉजिकली इफेक्टिव और सोशल इक्विलिटी ये दोनों बराबर एक तरह से बैलेंस रूप में यहाँ पर हैं। कुछ एक और जो तीसरा एस्पेक्ट मेरे से जानना चाहा था जब महेश भाई ने मुझे मेल भेजी थी कि किस तरह से पॉलिसी मेकर इस चीज को देखना चाहिए भविष्य में, तो मैं कहूँगा कि जो शीशे हैं देश के, जिनमें ओरण भी एक है, वो सिंपल एक लोकल कम्युनिटी द्वारा मैनेज्ड पैच नहीं है, बल्कि वो एक गवर्नेंस सिस्टम है जो कुछ कस्टमरी इंस्टीट्यूशंस के आधार पर होता है, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज होती है, उससे कल्चर वैल्यूज एसोसिएटेड होती हैं, और एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमें विशेषकर पॉलिसी मेकर्स को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। वहां पर कुछ ऐसे भी हैं कि जैसे कई पीढ़ियों का ज्ञान है ना, एरिया जो कंजर्ड एरियाज हैं उनमें किस तरह से एक दूसरे को, जो प्रोटेक्टेड एरिया है, यदि हम देखें प्रोटेक्टेड एरियाज वो किस तरह से कंप्लीमेंट करते हैं इन ओरणों को, इन CCAs को, तो वो एक महत्वपूर्ण वो पहलू समझना पड़ेगा।
कुछ कुछ जगह ये भी मुहिम चली कि जो सीसीएज हैं उनको प्रोटेक्टेड एरियाज की कैटेगरी में लाया जाए। तो मुझे लगता है कि उस फ्रेमवर्क में ना लाकर एक दूसरे को इनको कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप में हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये एक पॉलिसी मेकर्स को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी हो सकता है कि जैसे सीसीएज हैं, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है विशेषकर भारत की जैव विविधता के लिए, और उसमें ओईसीएम जैसे लार्ज एरिया, ओरन के बहुत बड़े एरिया हैं विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, जिसे मैंने कहा 25,000 हेक्टेयर, 20,000 हेक्टेयर, 15,000 हेक्टेयर, आप कोई भी फिगर 5 से 25,000 तक लेंगे, उतने बड़े बड़े हैं। तो हमें उनको एक तरह से ये ओरन एक तरह से इन सीटू कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा मॉडल है जो उस रूप में काम करते हैं। और कृपाविस का एक एफर्ट पूरा रहा है कि इन ओरनों को रिकग्निशन मिले, विशेषकर थार और अरावली जो दोनों ही बड़े लैंडस्केप हैं, एज ए ओशियम की दृष्टिकोण से इनको देखा जाए, समझा जाए। तो ये हम अभी एक और चीज कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त हम बेहतर स्थिति मान रहे हैं इन एस्पेक्ट पे, लेकिन ये पूरे देश में भी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट की पालना के हिसाब से भी अभी हम बहुत सारी कम्युनिटी कंसल्टेशंस कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, जो हमने राजस्थान से शुरू की हैं। और अभी बल्कि दूसरे राज्यों में जो भी साथी यहाँ पर हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो इस मुहिम में जुड़ें या अपने स्टेट में वो जिम्मेदारी लें और वहाँ देखें कि वहाँ का स्पेसिफिक किस तरह से पॉलिसी में ये मुद्दे आ सकते हैं। तो मैं संक्षेप में यही, चूंकि साथ समय का भी मुझे पालना करनी है 10 मिनट की, पर मैं ये कहूँगा कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का एक जो जजमेंट हुआ है ओरनों के बारे में और पूरे देश के बारे में, उसको लेकर भी हमें विशेषकर जो इस ग्रुप में हैं, अलग अलग राज्य से हैं, वो अलग अलग, जरूरी नहीं है कि राजस्थान वाला मॉडल वो हर स्टेट में लागू हो सकता है, वो संभव भी नहीं है और उसको उस रूप में देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज वहां के सीसीएज को लेकर क्या हो सकती है और फिर कैसे उनको इंटीग्रेट करके जो नेशनल पॉलिसी, जो जजमेंट का भी एक पॉइंट है कि एक नेशनल पॉलिसी बने, उसको फीड करें। तो इसी के साथ संक्षेप में महेश जी, ओवर टू यू। Yeah, thank you, Aman ji, for sharing Krapavis's experiences कृपावृक्ष की about अनुभवों को साझा करने के लिए धन्यवाद to the particular KMGBF targets. अमन जी। So from now we will move to Dr. Vinod Mathur sir. अब हम And डॉक्टर विनोद माथुर की बात सुनेंगे। he is former chairperson of the National Biodiversity Authority with the वो decades of नेशनल बायोडाइवर्सिटी experience अथॉरिटी in के conservation पूर्व and प्रमुख environmental रहे हैं governance. So और I पर्यावरणीय asked प्रशासन Dr. के ऊपर Mathur उनका sir, काफी अनुभव है। माथुर and we सर were से talking अनुरोध about other area-based conservation measures. कि हम So how should we understand क्षेत्र relationship आधारित between संरक्षण की बात कर रहे community थे। conserved areas and तो other कम्युनिटी कंजर्व्ड effective एरियाज area-based और conservation अन्य measures, क्षेत्र आधारित and what संरक्षणों के बीच क्या safeguards are संबंध हो सकता है necessary to और ensure क्या सुरक्षाएं recognizing सुनिश्चित करनी CCAs चाहिए and सीसीए OECMs के in biodiversity मान्यता planning दिलवाने के लिए, and reporting खासकर जैव विविधता strengthens नियोजन और rather रिपोर्टिंग than undermines the को customary मजबूत governance, बनाने के लिए community और उसमें autonomy, free and पारंपरिक prior प्रशासन को prior and informed consent नीचे and ना रखा convention जाए, उसके rights. लिए हम क्या कर सकते हैं, सामुदायिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हम क्या कर Thank you, सकते हैं। Mahesh, for providing this विनोद सर, opportunity. आपका स्वागत You है। have raised a धन्यवाद couple of महेश, points. आपने बहुत सारे आपने प्रश्न कई वो सवाल किए मुझसे हैं, पूछे पर हैं। मैं एक दो स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ। आज की जो हमारी चर्चा है, आज जो हमने अपने वक्ताओं को सुना, वो मेन इशू मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है कि हम बायोडाइवर्सिटी लॉस को, जो जैव विविधता का लॉस हो रहा है, उसको हमें बचाना है और उस बचाने के लिए हमको क्या क्या प्रयास करने हैं। जैसे लोगों ने बताया कि आज जब हम जैव विविधता संरक्षण की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आज आता है सीबीडी का, कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो क्यूमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क है। और उस फ्रेमवर्क के पूरे विश्व के लगभग 195 देशों ने हामी भरी है और उनका ये प्रयास है कि हम इस संरक्षण का कार्य करें।
लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब हमारे सामने दो मुद्दे हैं, हमको स्पीसीज को बचाना है, प्रजातियों को बचाना है, पर प्रजातियों को बचाने के लिए हमें उनके वास स्थल को, उनके हैबिटेट को, उनके इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। तो आज स्पीसीज कंजर्वेशन की कोई भी चर्चा स्पेसिस कंजर्वेशन के बिगर नहीं हो सकती। तो स्पीसीज एंड स्पेसिस, ये आप गौर करने की बात है कि स्पीसीज एंड स्पेसिस दे गो टुगेदर। अब बात आती है, स्पीसीज तो जो भी कुदरत ने हमको दे दी वो है, लेकिन स्पेसिस पे हमारा हाथ है। आप और मैं स्पेसिस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा जगह चाह रहे हैं। अगर मैं काश्तकार हूं तो मैं अपने खेत के लिए जगह चाह रहा हूं, अगर मैं बिल्डर हूं तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाह रहा हूं, अगर मैं अर्बन एरिया में रह रहा हूं तब भी मुझे ज्यादा अपने घर चाहिए वहां पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विश्व के अंदर जैसे स्पीसीज का नंबर अगर हम मान लें कि फिक्स्ड है, ऐसे ही स्पेसिस भी फिक्स्ड है, लेकिन उनका उपयोग जो है वो हमारे हाथों में है। तो आज जो हमारी चर्चा है कि क्यों हमें स्पेसिस कॉन्जर्वेशन के लिए जगह ढूंढनी है, और क्या उसमें हमारे जो ओईसीएम्स हैं, उड़ान हैं, जो हमारे अमन भाई ने बात करी, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। हमको ये बात को बहुत मजबूती से सोचना है कि जगह कहाँ है। हमने जो संरक्षित क्षेत्र बनाने थे, नेशनल पार्क बनाने थे, सेंचुरी बनाने थे, बना लिए। 5% हम कहते हैं हमारा रिजर्व फॉरेस्ट का टोटल एरिया सब मिला के बात करें तो 22-30% है हमारा। लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चाएं हुई, तब ये बात कही गई कि हमें एक नए टारगेट की ओर बढ़ना है, और जिसको अमन भाई ने भी कहा, जिसको कहते हैं 30 by 30 टारगेट, है ना, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर प्लैनेट एंड पीपल। हमारे सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल क्षेत्र है उसका भी 30%, और जो हमारा जलीय और कोस्टल क्षेत्र है, मेरीन क्षेत्र है, उसके भी 30% को हमें संरक्षित करना है। अब ये बात हमने मान तो ली, मॉन्ट्रियल में बैठ के हमने मान ली बात, यह कि हाँ साहब ऐसा करना है। लेकिन अब बात आती है कि जब हमारे देशों को, इंडिया इंक्लूडेड, इस रास्ते पे आगे चलना है, तो जगह कहाँ है और किस रूप में है। आज भी अगर आप देखें, मैंने 40 वर्ष तक सरकार के साथ काम किया है। आज भी अगर हम राज्यों से पूछें, तो जैसे ही आप संरक्षित क्षेत्र का नाम लेते हैं, अमन जी ध्यान दीजिएगा, नेशनल पार्क सेंचुरी का नाम देते हैं, जी। तो स्टेट जो है बिदकते हैं कि नहीं साहब, अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें कोई नेशनल पार्क सेंचुरी नहीं चाहिए। तो फिर जगह आएगी कहाँ से। तो हमारा जो पॉलिसी का और जो हमारे वैज्ञानिक वर्क है, उसने फिर एक नया शब्दों का एक वो किया, एक नया कॉन्सेप्ट को दिया ओईसीएम को, अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, कि हम नई जगहों को तलाश कर सकते हैं। और आज जो चर्चा है, जो आप सीबीडी में जा रहे हैं वहां पे ये चर्चा होगी कि इसमें प्रगति क्या हुई। हमने 2022 के अंदर फिर मान लिया कि ओईसीएम होगा, आईयूसीएन ने 2017 में ओईसीएन शब्द का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन 17 से लेके 2026 तक हुआ क्या है। और अगर आप भारतवर्ष की बात करें तो हमने कुछ प्रगति करी, जब वन्य जीव संस्थान ने, मंत्रालय ने, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी ने ओईसीएम की टास्क फोर्स बनाई, ओईसीएम का क्लासिफिकेशन लिया। तो हमारा आज जो प्रयास है वो ये है कि हम कौन से ऐसे स्थान हैं जिनको हम नामित कर सकते हैं। और अमन भाई ने ओरान की बात करी, डेफिनेटली जो है, जो भी उनका भौगोलिक क्षेत्र है, जितने भी हेक्टेयर क्षेत्र है, वो एक हमारा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। पर उससे भी ज्यादा हमारा जो कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज हैं, जिनके बारे में आशीष कोठारी भाई कब से बात कर रहे हैं, मेरे सामने विशेष जी बैठी हुई हैं, ये सब लोगों ने बरसों से इसके बारे में बात करी है। लेकिन इस बात को अब नया हमें एक जामा पहनाना है। आज भी, आज अगर हम इनसे बात करते हैं व्यक्तिगत, तो कहते हैं कि हमारे तो सीसीएस रिकॉग्नाइज नहीं है। तो अब इस रिकॉग्निशन के लिए कैसे हम आगे बात करें। और जब हम इनके पास जाते हैं, हर व्यक्ति को दिमाग में सोच है कि कहीं मेरी जमीन, कहीं मेरा क्षेत्र सरकार कब्जा तो नहीं कर रही है।
आज कोई नए तरीके से आ रही है, मैं नए पहले पहले नेशनल पार्क के लिए आई, फिर सेंचुरी के लिए आई, फिर उसके लिए आई, और अब ओईसीएम का नया मुद्दा लेके हमारी जमीनों को अख्तियाना चाहती है। तो मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहता हूं कि ओईसीएम आज प्रगति के रास्ते में, अगर हमको स्पीसीज कंजर्वेशन की बात करनी है, स्पेसीज ढूंढना है, तो ओईसीएम का तरीका बहुत ही उत्कृष्ट तरीका है। उससे जो जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं, समझिए मैं हिंदी में क्या कह रहा हूं, जो भी हमारा ट्रांसलेटर है, भ्रांतियां हैं, सच है झूठ है ये नहीं पता मुझे, लेकिन लोगों के मन में ये शंकाएं हैं कि कहीं हमारी जमीन तो नहीं चली जाएगी, इसको सरकार हड़प तो नहीं लेगी, फिर हमारे राइट्स होंगे, जो कम्युनिटीज जो इतने सालों से इनको प्रोटेक्ट करती आई हैं, उनका क्या रोल होगा। मैं इसी बारे में बात करना चाह रहा हूं कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अंग्रेजी में हम समझते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। प्रायर मीन पहले से बताई जाए कि क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म मीन्स उसके बारे में सारी सूचना दी जाए, और कंसेंट मीन्स आपकी हामी या जो आपकी सहमति है उसको लिया जाए। तो पहली बात जो मैं कह रहा हूं कि ओईसीएम के क्षेत्र हैं, चाहे हम कम्युनिटी कंजर्व एरियाज को लाने की कोशिश करें, वो बहुत जरूरी हैं, और वो तभी आएंगे जो भी हमारे सीसीए एरियाज है, मुझे नंबर ठीक से याद नहीं है, जितने भी हैं उनको हर एक को हमें देखना है कि उस एरिया की कम्युनिटी तैयार है कि नहीं है, उससे हमें बातचीत करनी है। तो जो बात मैं मोटी कह रहा हूं यहाँ पे कि सारे कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज ओईसीएम नहीं हो सकते, और सारे ओईसीएम जो हैं वो कम्युनिटी कंजर्व एरियाज बन नहीं सकते। दोनों बातें हैं। अब बात उठती है कि कौन से बनेंगे फिर। इसके लिए हमें प्रयास करना है, हमको जाना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, पूछना है जहाँ सबसे ज्यादा हमारी कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज है, लोगों से बात करनी है, उनसे उनका ये पूछना है कि इसको बनाने से फायदा क्या है। हर आदमी पूछता है कि इसको बनाने से फायदा क्या है, इसको नुकसान क्या है। तो हमको यही बात उनको समझानी है कि आज अगर आप प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं, आज आप कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो ये एक मुद्दा है। इसके साथ में महेश जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं कि जो जो 30x30 की हमने बात करी, वो एरिया है, और एरिया कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मेरी बात को समझिए, डुप्लीकेशन का बहुत खतरा है कि कोई वन क्षेत्र ऑलरेडी रिजर्व फॉरेस्ट है, मान लीजिए कोई कम्युनिटी कंजर्व एरिया है, वो ऑलरेडी रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है, या सेक्रेड ग्रोव है जो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है, वो तो ऑलरेडी काउंटेड है, उसको तो ऑलरेडी हमने जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारी फॉरेस्ट वेल्थ है, उसमें काम मान लिया है। तो हमको ऐसे सीसीएस देखने हैं जहां पे पार्टली हो सकता है वन क्षेत्र में हो, पर पार्टली वो रेवेन्यू में भी हो सकते हैं, प्राइवेट होल्डिंग में भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमने उनको इंक्लूड किया तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। दुनिया को तो लगेगा कि सब इंडिया ने बहुत जल्दी जल्दी ये बना लिए, लेकिन व्यक्तिगत और यथार्थ के अंदर नहीं हो पाएगा। तो हमको वो भी देखना है। और इनका आपने एक रिपोर्टिंग का भी मुद्दा उठाया, रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि ये ओईसीएम जो है ये विश्व स्थल के ऊपर हो रहे हैं, इंडिया में हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 124 ऐसे देश हैं जिन्होंने 30x30 हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर के लिए अपनी हामी भरी है। इंडिया ने भी, मैं आपको बता दूं, अक्टूबर 2022 में कहा कि हम भी इसका पार्ट बनेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, जो हमारी कंजर्वेशन एस्टेट है, उसको बढ़ाएं। तो हमको उस दिशा में बढ़ना है, और उसके बढ़ने के लिए हमको कई सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि इसके मैनेजमेंट में, इसके संरक्षण में, इसकी रिपोर्टिंग में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, ना होगी, जिससे हमारी कम्युनिटी के अंदर ये चीजें होंगी। तो डबल काउंटिंग जो है, इसके अंदर हमको ध्यान रखने का है। अब जैसे किसी ने मेरे को इसमें पूछा चैट के अंदर कि डबल काउंटिंग को आप कैसे अवॉइड करेंगे, तो हमको एक पायलट प्रोजेक्ट को रन करना चाहिए। आपको मैं महेश जी बताना चाह रहा हूं, आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, आप कोई भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कोई भी राज्य हैं, नागालैंड है, मेघालय, उनको ले लें। उत्तराखंड में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है,
मैं भी उत्तराखंड के अंदर रहता हूँ, राजस्थान में अमन जी हैं, महाराष्ट्र में आप खुद हैं। हम कोई ना कोई जिलों को लेके, कोई एरियाज को लेके वहां पे देखें कि जो कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो किसके संरक्षण में है, कितना उनका एरिया है, कितना वो वन क्षेत्र में ऑलरेडी काउंटेड हैं, और अगर वन क्षेत्र में नहीं काउंटेड हैं तो हम आज देखिए जीआईएस के अंदर, मैप के अंदर आप दिखा सकते हैं कि ये पार्ट तो फॉरेस्ट में कवर्ड है, पर ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है, कम्युनिटी इसको करने को तैयार है, इसका एरिया इतना है, इस एरिया को हम वो करेंगे। मैं एक और स्टेप आगे जाना चाहता हूं। कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज और ओईसीएम को हम बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा एरिया काउंट करना ही उद्देश्य है। मेरा ये कहना है कि अगर हमारे सीसीएज अगर ओईसीएम में आएंगे, एक उनके ऊपर एक अलग से, जिसको कहते हैं आइकॉनिक वैल्यू बढ़ेगी। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वो तो ऑलरेडी नेशनल पार्क सेंचुरीज है, उनमें क्या कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई साइट को आप वर्ल्ड हेरिटेज बनाते हो तो उसका एक राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर सम्मान होता है। ऐसे ही मैं अपेक्षा करता हूं कि जो भी सीसीएस को हम ओईसीएम में बनाएं वो एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर जाएंगे। हम कह पाएंगे कि हमारी मेघालय का वो कम्युनिटी, जम्मू एंड कश्मीर की वो कम्युनिटी, महाराष्ट्र की वो कम्युनिटी, राजस्थान के वो, ये सब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे रिकॉग्निशन आएगा। और मैं ये नहीं कहता कि संरक्षण के लिए बहुत पैसा है, पर जब पैसा आएगा तब हम उस पैसे को ओईसीएम जो सीसीएस हैं, जो आज चाह रहे हैं कि हमको पैसा मिले, वो हम पैसा सरकार से मांग कर सकते हैं कि हम आपकी कंजर्वेशन संरक्षित एस्टेट का पार्ट हैं, और उससे हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत बार ये बात उठती है कि इसका कोई लीगल रूप होगा कि नहीं होगा। इस बात को मैं कई वर्षों से, विशेष जी अपना सर हिला रही है, हम चर्चा कर चुके हैं। इन दोनों के फायदे नुकसान दोनों हैं। अगर कोई आप लॉ लाते हैं, अव्वल तो आज के विषय में वर्तमान की जो राजनीतिक हमारी स्थिति है, कोई भी नियम कानून को लाना आपको पता है कितना मुश्किल है। आपने सभी ने देखा होगा कि जब एग्रीकल्चर में रिफॉर्म में 3 एक्ट लाए तो लाने के बाद भी हमको उनको रिवर्स करना पड़ा। तो वो जो लीगल रूट है वो है, होना चाहिए, लेकिन अभी हम अपने आप को लीगल रूप में नहीं अपने आप को फांस लें, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अभी हम सिर्फ 80% को माने कि ओनरशिप आपके पास में रहेगी। आज सरकार ने, हमारे पास राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, उसके पास से लेके हम उनको नामित करें, हम एक रोस्टर बनाएं कि ये राज्यों में ये हैं, ये प्रस्तावित, अभी भी हम उनको प्रस्तावित बोलें, आप उनको पोटेंशियल ओईसीएम बोलें, क्योंकि पोटेंशियल को रियल करने में टाइम लगेगा और हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आज सबसे पहले भ्रांतियों को दूर करना है, कम्युनिटी को साथ करना है, और कम्युनिटी को ये समझाना है कि उनके जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जो सीसीएस इतने सालों से वो करते आए हैं, वो उसका उसका इस प्रकार के ओईसीएम रूट जाने से उसमें बेहतर होगा, उनके लिए भी, क्षेत्र के लिए भी और स्पीसीज के लिए भी। मैं यहाँ पे रुकूंगा, फिर बहुत सारे सवाल आएंगे, मैं उनका जवाब दूंगा, पर मैं अभी अपने व्यक्तित्व में यही कहना चाह रहा था कि ये एक बहुत अच्छा रास्ता है और हमें स्टेप बाय स्टेप लेके आगे बढ़ना है, और आप लोगों ने ये पहल करी है। आई विल एनकरेज यू, प्लीज कीप वॉकिंग स्लोली एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। आज जो कंजर्वेशन है, एक तरफ सी का, जो कंजर्वेशन का जो सी है, एक तरफ मेरे लिए कम्युनिटीज हैं और दूसरी तरफ कॉरपोरेट है। आज हम कॉरपोरेट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉरपोरेट की बात होती तो मैं वहां भी उनको यही समझाता कि ना तो कम्युनिटी के बगैर कंजर्वेशन हो सकता है, ना कॉरपोरेट के बगैर कंजर्वेशन हो सकता है। और जब ये बात हम तहे दिल से समझ लेंगे तो हमारा कोई भी काम करने का नजरिया जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, पर जो भी सवाल है कोई मॉडरेट कर ले ताकि हमको पता लगे। जी, थैंक यू। धन्यवाद विनोद जी। हमें चैट्स में काफी सवाल आ रहे हैं, बट ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम वी विल कई मूव एंड वी हैव सवाल आ रहे हैं चैट पे, 20 लेकिन minutes अभी for इतना question टाइम and नहीं है कि answer. हम बीच में लें We सवाल will जवाब। try to answer हम आखिर these के जो सवाल जवाब का सत्र questions. है उसमें ये Yes, सवाल due लें। to
some internet issues. Mr. Mahendra इंटरनेट के ji इश्यूज की even वजह was से not able to महेंद्र join जी at the start हमारे for साथ the जुड़ नहीं पाए community थे शुरू में presentation. के प्रेजेंटेशन He के is लिए। from Malvan, Maharashtra. वो I मालवन will महाराष्ट्र request से him, हैं Mahendra महेंद्र ji, जी। to present about their CCA in महेंद्र जी, 3 अपने 5 CCS के minutes. बारे में आप 5 मिनट में अगर प्रेजेंट कर सके Over तो to Mahendra हमें ji. बहुत मदद मिलेगी। महेंद्र जी, आप अपनी बात शुरू महेंद्र करें। जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? महेंद्र जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आप म्यूट तो आप पर अपने आप है को महेंद्र जी। अनम्यूट कर लें और अपना प्रेजेंटेशन दें अपने सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र के। आप म्यूट पर हैं। जी, अब अभी आप नहीं आ रहा है बोलिए। आवाज? जी जी अभी आ रहा है। प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते। मैं महेंद्र पराटकर फ्रॉम मालवण। मैं मालवण में मच्छीमार कम्युनिटी से हूँ, मछुआरे कम्युनिटी से हूँ। और हमारे यहाँ अभी पर्सिन फिशिंग और पर्सिन के फिशिंग के लिए एलईडी लाइट्स का जो यूज हो रहा है, उसके ऊपर जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है, जो पारंपरिक मछुआरे हैं जो काम कर रहे हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं। उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक जो संगठन है मालवण तालुका श्रमिक मच्छीमार संघ, वो बहुत पुराना है। 1960 साल में उसका स्थापना हुई थी, उस संगठन की। और वो वहाँ पिछले 60 साल से लगभग वो काम कर रही है ट्रेडिशनल फिशरमैन के लिए। तो अभी जो थ्रेट्स हैं पारंपरिक मछुआरों के सामने, वो इलीगल, जो गैर कानूनी तरीके से पर्सिन फिशिंग ऑपरेट हो रहा है समुंदर में, और उसके लिए एलईडी लाइट्स यूज हो रहा है। तो उसके वजह से जो इकोसिस्टम है वो भी सफर हो रहा है। और महाराष्ट्र स्टेट हो या सेंट्रल स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्होंने दोनों ने कानून लाए हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में 5 फरवरी 2016 को एक पर्सिन के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने के नियम जारी किए हैं। उसमें पर्सिन फिशिंग कहाँ होना चाहिए, जो महाराष्ट्र का बाउंड्री है 12 नॉटिकल का, उसके ऊपर कहाँ पर ऑपरेट होना चाहिए, कौन से वक्त यानी कौन सा पीरियड होना चाहिए, जैसे कि सितंबर टू दिसंबर में ही होना चाहिए। और इतने ही लाइसेंस होने चाहिए, 182 लगभग लाइसेंस होने चाहिए। जो अभी 500 के ऊपर है, और 500 के ऊपर 1000 जो है वो गैर कानूनी तरीके से पर्सिन ऑपरेट हो रहे हैं। एलईडी बोर्ड्स भी है। तो इसकी वजह से काफी असर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पे हो रहा है। और हाई स्पीड ट्रॉलिंग का भी मसला है यहाँ पर, जहाँ से कर्नाटक और गुजरात के हाई स्पीड ट्रॉलर्स यहाँ पर महाराष्ट्र की बाउंड्री में आते हैं और बहुत सारी मच्छी पकड़ के ले जाते हैं। उसकी वजह से जो छोटे मछुआरे जो किनारे के आसपास काम करते हैं, उनको मच्छी नहीं मिलता है, और उनको फिश नहीं मिलता उनका, और उनकी आमदनी घट जाती है। तो उसका भी उनके पूरा इको, उनके फैमिली का या पूरा आमदनी का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब अभी चल रहा है। और कानून लाने के बावजूद यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है अच्छे तरीके से। जैसे कि इलीगल बोट नहीं जाना चाहिए समुंदर में, अगर गया तो उसे पकड़ लेना चाहिए। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन और नहीं है। लोकल पॉलिटिक्स भी है, और पॉलिटिक्स की वजह से वो मछुआरे भी जो फिशिंग ऑफिसर है वो भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे। तो ये सब चल रहा है। कानून लाए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी ड्रोन फैसिलिटीज लाई है स्टेट गवर्नमेंट, ड्रोन फैसिलिटीज के साथ वो पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इलीगल बोट, पर्सिन बोट जा ही रहा है समुंदर में। तो कुछ हो नहीं रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, और मछुआरे झगड़ा दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बाद रिजल्ट आ रहे हैं, कागज के ऊपर नियम आ रहे हैं, लेकिन वो कागज के नियम कागज पे रह रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो नहीं रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। और बहुत सारी पिछले जो मैकेनाइज फिशिंग है वो ज्यादा बढ़ने की वजह से कुछ जो स्पेसिस है मच्छी के, वो भी अभी थोड़े रेयर हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। मछुआरों को खाने के लिए खुद को अच्छी मच्छी में मिल नहीं रही है, और डेली बेसिस पे भी नहीं मिल रहे हैं। रोज जब 15-20 साल पहले जैसे मच्छी मिल रही थी उनको खाने के लिए, वो खुद मछुआरों को भी अच्छी मच्छी खाने को मिल नहीं रही है। और ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रॉब्लम्स है कि लगातार मौसम बदलता रहता है, उसके ऊपर उसका असर भी ट्रेडिशनल फिशरमैन पे हो रहा है।
ये सारी बातें हैं। थैंक यू महेंद्र जी। बस 1 मिनट में आप बता सकते हैं कि संरक्षण के लिए आप क्या काम कर रहे हो, उसके हम बारे में। लगातार अप्रोच करते हैं, जैसे कि मिनिस्टर हो या फिशरी डिपार्टमेंट हो, उनको अप्रोच करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर। प्रोटेस्ट करते हैं यहाँ के लोग। मैं रिपोर्टिंग का काम करता हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो यहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। उसके बावजूद भी 1-2 दिन कार्रवाई का दिखाई जाती है, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि फिर से वो शुरू ही रहता है, इलीगल पर्सिन और इलेडी फिश। Okay. Thank you, Mahindra ji. Now I'm inviting Neha. She's the moderator for next part of the session. अब मैं Over नेहा to को you. आमंत्रित करता हूँ, जो अगले हिस्से की मॉडरेटर है। थैंक यू Thank you, सर। Mahesh. Thank थैंक you. यू सर। Thank you, Mahendra ji. Thank you, Mahesh. So we now warmly welcome our next panelist, अब हम Dr. अपने Khimanand अगले Balodi. पैनलिस्ट He's a खीमानंद बलोदी जी bioengineer को from the Kumaon आमंत्रित region करते of हैं। वो Uttarakhand. कुमाऊं रीजन से Dr. हैं, Balodi has उत्तराखंड worked के। closely with local डॉक्टर बलोदी communities to strengthen स्थानीय समुदायों के साथ conservation efforts काम करते and आए has हैं mentored सामुदायिक numerous संरक्षण के students मुद्दे पर, in और biodiversity कई research and छात्रों conservation को in उन्होंने Kumaon and अध्ययन Akhil के लिए village. प्रेरित किया है। So we are delighted to have you हम with बहुत us खुश हैं today. कि खीमानंद जी आज हमारे साथ So जुड़े Dr. हैं। Balodi, based on डॉक्टर your बलोदी, experience working with आपके illegal अनुभव के आधार communities, we पर would like to know what हम challenges जानना चाहेंगे do कि communities क्या face in चुनौतियां हैं participating आज meaningfully in biodiversity planning समुदायों के processes सामने and जैव decision विविधता making, की and योजना what बनाने में, निर्णय institutional प्रक्रिया में, capacity building or और policy support is संस्थान needed to ensure that संस्थागत knowledge स्तर and पर उनको क्या सहयोग governance दिया are जा सकता है effectively कि reflected at the उनकी state and national जो levels. जानकारी और ज्ञान Over है to you, उसको Mr. Balodi. संरक्षित रखा जा सके। धन्यवाद नेहा। नमस्कार सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मेरा नमस्कार। क्योंकि हमारे जो प्रीवियस पैनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया है, किस तरह से वो एरियाज को कर रहे हैं और किस तरह से जो है हमें पॉलिसी की ज़रूरत है। लेकिन इस पॉलिसी में अगर हम बात करें लोकल कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव में, तो बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको उस प्लानिंग प्रोसेस में बहुत लेट इन्वॉल्व किया जाता है। तो या तो क्या है कि वो उसको जो है इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी जो है वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है। तो इससे क्या होता है कि उसका मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन उस पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए या कुछ अगर प्लानिंग है उसके लिए नहीं हो पाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ साथ और चीज़ें ये हैं कि जब हम जैसा कि सर बता रहे थे, माथुर सर, कि हम उनको ये बताएं कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम कुछ एरिया बेस्ड कंजर्वेशन की अगर बात कर रहे हैं। लेकिन हमको उसके साथ साथ ये बताने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि उसके नुकसान क्या हैं, क्योंकि ये कम्युनिटी को अगर थोड़ा लेट में या उससे अगर कम्युनिटी के राइट्स लिमिट होते हैं तो कम्युनिटी उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है लेटर ऑन। तो ये जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे ये बताना भी ज़रूरी है कि हो सकता है हमारी कम्युनिटी ये नहीं जानती, और शायद नहीं जानती है, मेरी कम्युनिटी भी शायद नहीं जानती है कि कन्मिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है, या उसको सीबीडी क्या है, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट क्या है। शायद वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं जानती, लेकिन वो कंजर्वेशन जानती है। उसको पता है कि मुझे क्यों कंजर्व करना है, और वो इसको जो है जनरेशन से जो है वो प्रैक्टिस करती आ रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और चैलेंज फिर यही होता है कि क्या हम जो इस तरह की जो है कंजर्वेशन प्लानिंग है उसमें हम कम्युनिटी के राइट्स को, कम्युनिटी के जो कल्चरल बिलीफ है उसको, या कम्युनिटी का जो नॉलेज है क्या उसको हम इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सोचने का विषय है। और इसके साथ साथ कि जब हम उनके पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो क्या हम उनको इतना समय दे पा रहे हैं, क्या एक्सेस हमारे पास इतना उनके पास इतना एक्सेस है कि वो हमारे उन कंसल्टेशन तक पहुंच पा रहे हैं। और इससे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या हमारा उसमें जेंडर का पार्टिसिपेशन बहुत मीनिंगफुल है क्या, क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड की भी बात करूं या हम हिली एरियाज़ की भी बात करें तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन नेचर कंजर्वेशन में एक अलग ही रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब बात कंसल्टेशन की आती है तो मोस्टली जो है जो लेडी, अगर जो
विमेन अगर कोई हम कह सकते हैं कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव भी है तो उनके जो है रिलेटिव, उनके जो है सगे संबंधी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे क्या है कि वो रिलेटिव का जो रोल है या रिलेटिव का जो परसेप्शन है वो तो हम कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन जो विमेन है या यूथ है, क्या हम उनका कंट्रीब्यूशन उसमें कर पा रहे हैं? तो ये एक चैलेंज हमेशा रहता है और इसीलिए मुझे ये लगता है कि कम्युनिटी हो सकता है कि हमारे पॉलिसी टर्म्स को नहीं जाने, क्योंकि पॉलिसी टर्म्स जो है बिल्कुल टेक्निकल हो सकते हैं। लेकिन वो ये जानते हैं कि अ, हम संरक्षण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आजीविका उस पे रिलेटेड होती है, उनके जो है कल्चरल बिलीफ उस पे रिलेटेड हैं और इतना ही नहीं, वो ये भी जानते हैं कि अगर हम इसको कंजर्व करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी जो है ठीक से रह सकती है। दूसरी बात जो नेहा आपने बोला कि फिर इसमें अगर इस तरह की जो चैलेंजेज हैं, तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए या हमारे जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो इसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट है या हमारे कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सबसे पहले जो कम्युनिटी लेड अप्रोचेज हैं, उसको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, हम जो है नई चीज़ें इसको लेके आ रहे हैं, इसको लीगल जो है अमली जामा पहना रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके जो खुद के जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, उसको थोड़ा रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा। उनके जो है उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा और सिर्फ़ इतना ही नहीं, उसको हमें कम्युनिटी को स्टेक होल्डर, बेनिफिशियरी जैसा भी नहीं देखना। उसको जब हम ये प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको हमें पार्टनर की तरह देखना है। तो ताकि हम जो है एक बहुत अच्छे एक मीनिंगफुल प्लानिंग या हम कह सकते हैं कि जिसके लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स हों, उसको हम जो है तैयार कर सकें। और इसके साथ-साथ जब मैं बात की कि क्या हमारी कम्युनिटी ये जानती है कि सीबीडी क्या है, केएमजी बीएफ क्या है या नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी क्या है? तो क्या हम उसको थोड़ा बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेज़ में उसको ट्रांसलेट करके, उसको बना के जो कि कम्युनिटी के लिए समझना, सुनना उसको आसान हो, क्या हम ऐसा बना सकते हैं? क्योंकि इसकी ज़रूरत है। और दूसरा, अगर हम कभी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो क्या हम ऐसी जगहों पे कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड इवेंट्स, एक्सरसाइज़ कर सकते हैं जो कि उनकी रीच में हो? ये नहीं कि हम उसको जो है बहुत दूर कर रहे हैं जहाँ तक कि उनका आना ही जो है पॉसिबल नहीं है। इसके साथ-साथ जो है जब हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम लीगल जो बैकिंग है किसी पॉलिसी के लिए या किसी कंजर्वेशन के लिए, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए। लेकिन लॉ हम जब बात करते हैं तो लॉ या लीगल जो उसका प्रावधान है, वो हो सकता है कि इश्यू नहीं हो। इश्यू ये है कि हम जब उस लॉ को बना दे रहे हैं तो उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो जानना ज़रूरी है। क्या वो रोक रहा है हमारी कम्युनिटी को? क्या उसके राइट्स को रोक रहा है? तो उसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जब हम बायोडायवर्सिटी प्लान बनाएँ, तो हम उसको कम्युनिटी के साथ बनाएँ, कम्युनिटी के लिए ना बनाएँ। तो ये मेरा कंसर्न है। तो थैंक यू। Thank you, Dr. Balodi, for your insight on डॉक्टर community-led बलोदी, आपके conservation and the विचारों के लिए challenges faced by धन्यवाद communities. कि क्या चुनौतियां हैं आज हमारे For our समुदायों के last सामने। panelist, I would like to और हमारे invite आखिरी Dr. पैनलिस्ट Vishesh Uppal. डॉक्टर विशेष She's उपल हैं। Director Governance Law and Policy at वो गवर्नेंस WWF लॉ एंड India. पॉलिसी की डायरेक्टर With हैं। over 3 decades of experience in 3 environmental दशकों का उनका development, अनुभव है biodiversity पर्यावरण conservation, प्रशासन, and community-based natural जैव resource विविधता management. संरक्षण पे She has और played a प्रबंधन key के role in मुद्दों पे, shaping conservation policy at both और the वो national and संरक्षण international नीति level. निर्माण में Now, शामिल रही हैं we would राष्ट्रीय like to know अंतर्राष्ट्रीय your स्तरों पर। thoughts from policy तो मैं perspective. नीति के Um, नजरिए से आपकी What बात सुनना opportunities do चाहेंगे। existing क्या legal मौके institutional हैं framework हमारे offer सामने to कानूनी recognize and support और community नीतिगत and community स्तर पर, governance in biodiversity conservation? जिससे And कि given हम the nature of सामुदायिक existing संरक्षण को legal and मदद policy कर सकते हैं, framework, सहयोग कर what would सकते a हैं। new approach or paradigm और for community क्या कोई conserved नए areas look like? सोच और नए Over to पैराडाइम you, ma'am. की जरूरत है कम्युनिटी Thank you, कंजर्व Neha. एरिया के लिए?
I think excellent case studies, presentations from all our friends from सभी across the प्रेजेंटेशंस country. बहुत ही I think बहुत अच्छा एक्सेलेंट लगा थे. सबको सुन के, और also I think जो समस्याएं भी I really बताई loved हैं, it. काफी challenges The भी हो रहे हैं. I think challenges that महेंद्र they जी have ने talked सबसे about. ज्यादा उनके बारे में बोला है. I think डॉक्टर माथुर ने काफी कुछ कवर कर लिया है, बट Dr. Mathur has covered a lot ये of है things. कि हमारे यहाँ बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे पॉलिसीज हैं. उसमें कुछ कुछ प्रावधान आप गिन चुन के बोल सकते हैं जो एक्चुअली लोगों के बारे में सोच रहे हैं. सो आई थिंक दैट हैज बीन एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि इतना बड़ा देश है, इतने सारे हमारे लॉज हैं. लॉज में बहुत एनेबलिंग प्रोविजंस भी हैं. वेदर आप सबको पता है, आप अगर CFR वाला प्रोविजन देखो FRA में, या पैसा का ग्राम सभा वाला प्रोविजन देखो, या बायोडायवर्सिटी एक्ट में भी है प्रोविजंस. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कम्युनिटी रिजर्व एक नया एक लाया गया था, एक तरह का प्रोटेक्टेड एरिया 2003 में. तो ये सारे हैं प्रावधान, बट ये कितने इंक्लूसिव हैं, और इनको जब लिखा गया है इसमें कितनी सोच डाली गई है कि एक्चुअली जो कंट्रोल है वो एक्चुअली लोगों के पास पहुंचेगा. मे बी FRA में सबसे ज्यादा है अगर आप देखेंगे तो, बट तब भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं. बहुत सारे स्टेट्स भी हैं जिन्होंने अपने एक्ट्स बनाए हैं. आई थिंक वन पंचायत का एक एग्जाम्पल दिया गया है, और राजस्थान में भी आई थिंक अमन जी ने बताया है. अंचल एक्ट्स भी हैं आई थिंक अरुणाचल का. बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे डाइल्यूशंस हो रहे हैं, वेदर वो सेंट्रल एक्ट हो या वो स्टेट एक्ट्स हो या पॉलिसीज हो. देयर आर दीज कॉन्स्टेंट डाइल्यूशंस, एंड ये सारे एक्ट एक तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बनाए हैं. कुछ स्टैट्यूटरी हैं, जैसे BMCs हैं, CFR-MCs हैं, ग्राम सभा से. ये बहुत अच्छे प्रावधान है कि एक्चुअली लोगों के ये संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत ज्यादा काम कर सकती है संरक्षण के लिए. पर प्रॉब्लम ये है कि आधे एम्पावर्ड इनफ. इनफैक्ट कभी कभी जो सेल्फ एस्टैब्लिश्ड होते हैं जैसे CCMC हैं, वो ज्यादा आगे बढ़ के, क्योंकि वो खुद से बने हैं, सशक्त होते हैं, वो ज्यादा आगे बढ़ के ज्यादा काम कर सकते हैं. बिकॉज ये जो अंडर द लॉ जो बहुत सारे बने हैं, अच्छे प्रावधान है, अच्छे उनके पास कहीं कहीं पावर्स भी बहुत हैं, पर आधे एम्पावर्ड इनफ. डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, देयर आर सेलेक्टिव पावर्स, देयर इज जेंडर इम्बैलेंस. आई थिंक उसके बारे में काफी बातें हो चुकी है. एलीट कैप्चर है, एस्पिरेशंस अलग है. आई मीन अमन जी के साथ मैं कल ही थी, तो यंग जनरेशन एस्पिरेशंस और ओल्ड स्कूल सिस्टम्स. अब हम सब तो ओल्ड स्कूल ही हो गए एक तरह से. हाँ, कि वो मैच करते हैं कि नहीं, क्योंकि लोगों ने एक तरीके एक सिस्टम बनाया है, बेशक ओरन समिति बनाई है या कुछ भी सिस्टम बनाया है बचाने के लिए. पर 25 साल के बाद जब यंग जनरेशन टेक ओवर करती है, डू दे थिंक दैट्स रेलेवेंट? उनका कोई और एंगल होता है. आई मीन ये तालमेल हम बैठाते हैं कि नहीं. So I think these are some very kind of concerns कि हमारे पास ये है. We have enough ample provisions अगर हम उसको सही में अच्छी तरह से यूज कर सके. पर half these provisions often say consultation. हाँ, पर वो कंसल्टेशन काफी नहीं है आज के दिन में. टेन्योर सिक्योरिटी होना जरूरी है. that is very important. You have to actually negotiate. Consent already डॉक्टर माथुर ने रेस किया है, वो एक बहुत जरूरी है. ये हम सोचते हैं बस लोगों से बात कर ली, उनको इन्फॉर्म कर दिया, बहुत हो गया. दैट इज नो लॉन्गर, दैट्स नॉट गोइंग टू अप्लाई एनीमोर. और वो आज के दिन में हो सकता था 1980s में, चलो शायद वो चल सकता था, लेट 70s 80s में, पर अभी वो नहीं चल सकता और चलना नहीं चाहिए. वो गलत है. बिकॉज लोगों को की राय, लोगों क्या चाहते हैं, उनके क्या एस्पिरेशंस है, किस तरह से संरक्षण चाहते हैं. क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि संरक्षण जरूरी है. हमारे को अपने बेसिक इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए जरूरत है. फार्मर को पानी चाहिए, फिशरमैन को मछली चाहिए, ठीक है ना, फार्मर्स को पॉलिनेशन चाहिए. ये सारे के लिए हमें संरक्षण जरूरी नहीं है. ये हम नहीं बोल रहे हैं कि आप सिर्फ मेगा स्पीशीज के लिए संरक्षण करो, पर इनके लिए भी जरूरी है. और वो क्या मेथड है, एंड एक्चुअली बहुत अच्छे मॉडल्स हैं. आज ही हमने केस स्टडी सुने हैं 2-3, और हम जानते भी हैं कि बहुत अच्छे मॉडल्स हैं जहां लोगों ने अपनी तरीके से
एक अच्छा सिस्टम बनाया है संरक्षण करने का जो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है. But I think again, there are also lots of gaps. I think marine sector, coastal sector में बहुत gaps है because एक marine fishing regulation act है, पर वो बड़ा एक central model type बना दिया है, हर एक states को दिया था कि आप अपना प्रावधान बनाओ. पर वो बड़ा एक सेंट्रली सर्कुलेटेड मॉडल फ्रेमवर्क में बना लिया है सब में, तो उसमें पता नहीं लोगों की भागीदारी है भी कि नहीं. यू नो तो ये सारी चीजें हैं जो हमको देखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ स्टेट्स हैं यू नो जैसे अब अरुणाचल है, उन्होंने एक ड्राफ्ट सीसीए गाइडलाइन बनाई है, पब्लिक डोमेन में भी डाला है उसको. उसमें कमेंट्स भी लिए हैं, अब उसके बाद फिर वो चुप हो गए हैं. सिमिलरली इवन देयर आर सम नाउ ट्राइबल काउंसिल्स who also want to, वो खुद चाहते हैं कि अब हमारे जो ऑटोनोमस काउंसिल्स के हमारे जुरिस्डिक्शन में हम एक सीसीए पॉलिसी टाइप बनाए, बिकॉज हमारे लोग चाहते हैं कि वो संरक्षण करें. पर वो ये है कि टेन्योरल सिक्योरिटी, इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, जेंडर इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें रख के वो करना चाहते हैं. तो आई थिंक देर इज अ पॉजिटिव ट्रेंड, बट द फैक्ट इज कि जो एग्जिस्टिंग लॉज भी हैं, प्रॉब्लम ये है, आई थिंक महेंद्र जी ने शायद बोला है बहुत क्लियरली कि कानून तो है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. नहीं. सो आई थिंक ये एक बहुत जरूरी चीज है जो हमको देखना है. अगर बायोडायवर्सिटी एक्ट भी है या कम्युनिटी रिजर्व भी है या सीएफआर भी है, उसको कितनी अच्छी तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इन इट्स ट्रू स्पिरिट. आई थिंक वो एक बहुत जरूरी चीज है. एंड प्रोबेबली हमें दो या तीन तरह के अप्रोचेस लेने चाहिए. एक तो इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, वो एनेबलिंग प्रोविजंस का. और एक बहुत जरूरी है रिकग्नाइज करना कि ऑल लॉज आर इम्पोर्टेंट एंड दे नीड टू बी प्रायोरिटाइज इक्वली. ये नहीं है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सुप्रीम है या एफआरए सुप्रीम है, ऐसा नहीं है. सारे लॉज इक्वली इम्पोर्टेंट है और उनको इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक जैसे पहले भी बात की है, स्पीशीज भी बचाना है, हैबिटेट्स भी बचाने हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज भी एंजॉय करने हैं, बेनिफिट्स भी लोगों को मिलना है. लोगों का की राय, हाउ पीपल वांट टू कंजर्व इन विच मैनर नीड्स टू बी रिकग्नाइज्ड. आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो आई थिंक इसके लिए वन आई सेड, जैसे मैंने बोला कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसमें माइंडसेट्स भी चेंज करना है. हाउ डू यू इंश्योर दैट जो कस्टोडियंस हैं, जो सरकारी कस्टोडियंस हैं, वो किस तरह से अपने अपने माइंड खोले, हाउ दे एक्चुअली आर मच मोर ओपन टू डिफरेंट अप्रोचेस फॉर कंजर्वेशन. बिकॉज ये एक दिमाग में है कि सिर्फ सरकार ही बचा सकता है, वो गलत है. लोग उससे ज्यादा बचाते हैं और कभी कभी उससे अच्छा भी बचाते हैं. ये हम नहीं बोल रहे हैं कि सरकार नहीं करता है, सरकार भी बहुत अच्छी तरह से अपने काम करती है नहीं, बट लोग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और लोग भी वो ही जो वो करते हैं वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट करता है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पे. तो आई थिंक ये जो समझ है, ये समझ हम किस तरह से सबके बीच में फैलाएं, आई थिंक ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, गवर्नेंस मैकेनिज्म्स, बिकॉज कानून है, कुछ कहीं कहीं इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पर ये जो मैकेनिज्म्स हैं कि किस तरह से डिसीजन होए, कौन डिसाइड करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, इस पे हमको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट बिकॉज इंस्टीट्यूशन बन जाती है, इट डजंट मीन कि वो खुद एम्पावर सशक्त हो जाते हैं. सो वो एक क्या सपोर्ट, क्या फैसिलिटेशन, क्या हम कर सकते हैं, उस पे ध्यान करना चाहिए. सेकेंड इज कि हम ये जितने भी सीसीएज हैं या सेक्रेड ग्रोव्स हैं या ओरन्स हैं, आई मीन आप जो भी नाम ले लें, उनके लिए हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंसेस हों हमारे पास टू शो दैट दे एक्चुअली कंट्रीब्यूट, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं. और सिर्फ टारगेट 2-3 पे नहीं, सिर्फ 30-30 और टारगेट 2 पे नहीं, 4, 6, 8, 11, 22, 23, अगर आप देखोगे ये सारे टारगेट्स पे, टारगेट 11 बेनिफिट्स, टारगेट 22, 23 सब में KMGBF की बात हो रही है, तो मैं उसके टारगेट्स गिन रही हूँ. पर वो छोड़ दीजिए, हमारे नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान के भी टारगेट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के भी टारगेट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारा क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान्स को भी करते हैं. ये सारी जितने सीसीए के जो हैबिटेट्स हैं या जो स्पेसेस है, वो हमारे क्लाइमेट रेफ्यूजियर्स हैं, वो हमारे नीश हैबिटेट्स हैं स्पीशीज के लिए, या कहीं से पानी हो, ग्रासलैंड हो, अल्पाइन जोन हो, कोस्टल एरिया हो, जंगल हो, जो भी हो, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन
ये प्रोवाइड करते हैं हमारे सीसीएस। तो इसके लिए हमको जितने ज्यादा एविडेंस और जितने ज्यादा हम स्टोरीज करके कन्विंस करना बहुत जरूरी है, आम आदमी को भी, सिटीजन्स को भी। बिकॉज जो बहुत दूर है, जो दिल्ली में बैठे हैं आधे लोग, उनको पता नहीं है सीसीए क्या है, और वो सोचते हैं अरे लोग क्या कर रहे होंगे, ठीक है ना। वेदर इट इज दे आर कंजर्विंग स्मॉल एरिया, मेडिसिन प्लांट के लिए कर रहे हैं, फॉडर के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं, रिलीजियस कल्चरल जो भी जिस चीज के लिए भी कर रहे हैं, उसका हमको एविडेंसेस हमको ज्यादा से ज्यादा ला के दिखाना है। क्योंकि क्या है कि अभी राइट नाउ दे, हम जब बात करते हैं संरक्षण की, लोग को सिर्फ प्रोटेक्टेड एरियाज नजर आते हैं, ठीक है ना, बिकॉज दे फील प्रोटेक्टेड एरियाज में ही संरक्षण होता है, पर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जो इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन करती है, और उसका हम किस तरह से करें। और द थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हमको करना चाहिए, इस हमको स्टेट गवर्नमेंट्स, ट्राइबल काउंसिल्स, ऑटोनोमस काउंसिल्स जो बॉडीज हैं, उनके साथ काम करके उनके सीसीए के पॉलिसीज बनवानी चाहिए एट दैट लोकल लेवल, सब रीजनल, स्टेट लेवल। क्योंकि कहीं पे ऐसी पॉलिसी चाहिए जहां सिर्फ सीसीएस को रिकग्नाइज करने की जरूरत है, फॉर्मल रिकग्निशन देने की जरूरत है। कहीं पे ऐसी पॉलिसी चाहिए जहां लोगों को एनकरेज करना है कि आप सीसीएस बनाओ। यू नो, एवरी स्टेट इज डिफरेंट, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट, विद इन स्टेट्स थिंग्स आर डिफरेंट। तो ये अगर हम डिसेंट्रलाइज कुछ कर सकें, जहां हम सीसीएस को फॉर्मल रिकग्निशन दे सके। जैसे डॉक्टर माथुर ने बोला, कोई सीसीएस ओईसीएम के कैटेगरी में आ सकते हैं, कोई शायद नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले कुछ कमिटमेंट्स कर दिए हैं, अब वो रेट्रोफिट तो नहीं हो सकता। पर अगर आप ओईसीएम भूल भी जाओ, तब भी विद इन इंडिया अगर हम सीसीएस को फॉर्मली रिकग्नाइज करें, वो कहीं पे भी हो, वो आरएफ में हो, वो पीए में हो, या वो रेवेन्यू लैंड पे हो, कोई भी लीगल स्टेटस हो उसका, तो उससे क्या होगा कि द कम्युनिटीज विल आल्सो फील इंसेंटिवाइज्ड, और उनको पता है कि भैया हमने इतनी जो मेहनत की है, इसकी रिकग्निशन है, और इसको कल एक झटके से कोई डिरिजर्व नहीं कर देगा या बोलेगा सॉरी आप लोग तो यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी से कर रहे थे, हमसे तो परमिशन ली नहीं, तो ये तो हमारी जमीन है और हम इसको ले जाएंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं ये रुक सकती हैं, क्योंकि अभी काफी जुडिशरी भी काफी ओपन है। अगर इफ दे नो कि देयर इज अ सीसीए, दे आल्सो वेक अप टू सच कंसर्न्स। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज नीडेड, दैट वी नीड टू काइंड ऑफ, देखिए सेंट्रली ओईसीएम्स का भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार है, सीसीए की भी ड्राफ्ट गाइडलाइंस, आई थिंक आशीष कॉल में उसको पता होगा, बिकॉज वो भी था, पर कहाँ गया वो, कुछ हुआ नहीं उसका। तो आई थिंक स्टेट्स में अगर छोटे लेवल पे भी हम कर सकें, इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इट इज राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको फॉर्मली रिकग्नाइज करें और इनको मतलब मेन कंजर्वेशन एजेंडा और कंजर्वेशन के कॉन्वर्सेशंस में इंक्लूड करें। थैंक यू। Thank you, ma'am, for your perspective and your thoughts. These are very valuable. And also, when you said that government also have to be open to different approaches, I think that's very important, that they should be open to all the approaches and talk to community. So, and also thank you to all the speakers for सभी स्पीकर्स their को धन्यवाद, perspective, their thoughts, आपने and अपना all the नजरिया insight और that they विचार have हमारे given. साथ शेयर किए। With this, now we have come to our question and answer session. अब हम To सवाल begin जवाब के with our सत्र में first हैं, question, there are really और interesting questions in the chat box. I'll पहला सवाल, first take. कुछ सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है चैट बॉक्स में। The first question is for Aman ji. अमन जी के लिए है पहला With सवाल। more wind and solar power projects in Rajasthan, in your राजस्थान में विंड और experience, does सोलर the local प्रोजेक्ट्स आ community have रहे हैं, any legal instruments to push तो back क्या समुदाय projects, के पास इन प्रोजेक्ट्स especially को since EIA वापस and धकेलने के SIA लिए are कोई diluted? कानूनी Over प्रावधान to है? you, Aman ji. या अभी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको लेके बताऊंगा। अभी 2-3 जहां पे कंपनी के लिए, विशेषकर अडानी नाम लेने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी पिछले दिनों एक लैंड अलॉट हुई, बहुत बड़ा एरिया एक गांव में, और वो ओरन की जमीन थी। तो चूंकि अभी ये जानना चाहा ना कि क्या है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट हुआ है उसके तहत उसको रोक दिया गया है, उसका रेफरेंस लाते हुए। ठीक है, तो एक तो ये एक दूसरी चीज, ये अभी एक और ऑर्डर पास हुआ है जो
स्टेट ओरण समिति ने पास किया है, जो सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को गया है, उसमें कहा गया है कि इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए किसी भी ओरण की जमीन को किसी भी दूसरे पर्पज के लिए ना तो अलॉट किया जा सकता है, ना उसकी कैटेगरी चेंज की जा सकती है। बीच में क्या हुआ है, मैंने एक बात कही थी कि 1952 से लेकर इस बीच में बहुत सारे ओरण के खसरा नंबर बदल गए हैं। तो अभी वो भी एक प्रयास चल रहा है कि 1952 से 1952 से लेकर अब तक कितने ओरण दूसरी कैटेगरी, विशेषकर रेवेन्यू कैटेगरी में ले जाके जिनको अलॉट किया गया है, वो कंपनियों के लिए भी हुआ है, वो सोलर के लिए भी हुआ है। तो अभी तो वो भी मुहिम चल रही है कि उन सब खसरा नंबर को भी वापस लाया जाएगा, और जहां जहां पर अलॉट हुआ है इस बीच में, इस जजमेंट के तहत ओरणों की उस जमीन को छुड़वाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी एक ये बड़ा है। दूसरा एक और जो कम्युनिटी का भी मैं एंगल लूं इसमें, अभी कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये एक कमेटी बनी है, और जिनको ये कहा गया है कि वो हर ओरण पे जाकर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका चेयरमैन है, हर ओरण पर जाकर वो डिमार्केशन का काम करेंगे कम्युनिटी के साथ, उसका कि कहाँ कहाँ है, जो पत्थर गढ़ी का काम करेंगे। यदि वहां किसी तरह के इश्यूज हैं और कम्युनिटी रेज करती है, किसी तरह की भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको एड्रेस किया जाएगा। और ऐसे कई एग्जाम्पल जैसलमेर जिले में पिछले 5-6 महीने में हुए हैं, जहां कम्युनिटी रेजिस्टेंस के कारण कम्युनिटी ने इस जजमेंट का सहारा लेकर वहां पर कई कंपनियों का काम रुकवाया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण टूल है सुप्रीम कोर्ट वाला, और लोग उसको समझ रहे हैं, और लोग अभी कम्युनिटी बल्कि पंचायतें प्रस्ताव लेकर कलेक्टर को भेज रही हैं कि आप हमारे ओरण में भी ये दिक्कत है, आप हमारे इस ओरण का सीमांकन करवाइएगा। तो एक मुहिम राजस्थान में इस वक्त बहुत अच्छी, मैं जिसको पॉजिटिव देख रहा हूं, क्योंकि पिछले 1 दशक में बहुत बिगाड़ हुआ है, बहुत ओरणों की जमीन अलॉट हुई है, बहुत सारा अलॉटमेंट हुआ, बहुत सारा एनक्रोचमेंट भी हुआ। इस सब को एड्रेस करने के लिए एनक्रोचमेंट, और मैं ये भी यहाँ कहूंगा क्योंकि मैं कम्युनिटी के साथ सीधा काम करता हूं तो मुझे मालूम है, कई बार हम रोमांटिसाइज कर देते हैं, कम्युनिटी के अपने बहुत एनक्रोचमेंट हैं। बड़े बड़े किसानों ने 500 बीघा, 200 बीघा, 300 बीघा लैंड एनक्रोच की है ओरण की। तो वो सारे इश्यूज भी हैं जिनको अभी एड्रेस किया जा रहा है। तो अभी एक ये कम्युनिटी हो चाहे सरकार हो, हर स्तर पर इसको एड्रेस करने की कोशिश हो रही है। नया थैंक यू अमन जी। टाइम के शॉर्टेज के कारण अभी मैं दूसरा जो सवाल है चैट बॉक्स में से, वो डॉक्टर माथुर के लिए है। सर, the second question is that if CCAs within reserve forest cannot be अगर रिजर्व counted फॉरेस्ट as के CCS OCM को and OECM cannot be में नहीं counted काउंट किया जा separately, सकता then what या would अलग be से the भी most काउंट नहीं meaningful किया जा way to सकता, recognize, तो count उनके and report मान्यता के लिए on their conservation efforts, सबसे असरदार not तरीका as क्या होगा reserve जहाँ पे forest? समुदाय के Seek प्रयासों को मान्यता protection दी from जा सके, external threats, seek support from their बाहर के efforts. जो खतरे हैं उनसे बचा सबसे जा पहले तो सके। मैं बात कहना चाहूंगा कि ये बात हमारे को संज्ञान में रखनी है कि कोई भी एरिया जब हम रिपोर्ट करें, उसका वर्तमान में क्या जिसको कहते हैं स्टेटस है, वो रिजर्व फॉरेस्ट है कि नेशनल पार्क है कि सेंचुरी है। कोई भी एरिया, जैसे कोई नेशनल पार्क का एरिया सेंचुरी में नहीं जा सकता, सेंचुरी का नेशनल पार्क में नहीं आ सकता। पहले हमें डबल काउंटिंग को समझना है। और डबल काउंटिंग इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी सरकार ने, हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने जितना भी हमारा वन क्षेत्र है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को सीपीटी के लैंग्वेज में, आईयूसीएन के लैंग्वेज में संरक्षित क्षेत्र को डिक्लेयर किया है। तो जो आप समझ रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तो 4 ही कैटेगरी है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। उनको आप जोड़ दें तो वो तो 5% है। लेकिन अगर हम हमारे देश की रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात करें, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जिस डेटाबेस को मेंटेन करता है, तो वहां पे हमारा जो वन क्षेत्र है, क्योंकि वन क्षेत्र भी जो है वो प्रकृति के और प्राणी के संरक्षण के लिए काम कर रहा है। आज रिजर्व फॉरेस्ट में भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो वाइल्ड लाइफ के खिलाफ जा सकती हो। तो हमने
सीबीडी को बताया, दुनिया को बताया कि हमारा जो संरक्षित क्षेत्र है वो 5%, तो अगर हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को लेके चलें तो 5% के आसपास है। और अगर हम ये सारी हमारी जो वन क्षेत्र है उसको जोड़ें तो करीब 22-23% है। कुछ ओवरलैप है क्योंकि बहुत सारे नेशनल पार्क सेंचुरीज एक जमाने में रिजर्व फॉरेस्ट थे। अब बात आती है कि अब हम ओईसीएम के लिए नया एरिया कहाँ से लाएं। आपने देखा होगा, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है ये बात को कि ओईसी जब भी कोई नई चीज आती है तो एक तो तरीका ये है कि हम कोई बड़ी पॉलिसी लाने की कोशिश करें। जो मैंने बता दिया कि बड़ी पॉलिसी को आप लाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। और मुझे विशेष जी की बात से अच्छा लगा कि कोई राज्य ऐसे हैं जो राज्य के लेवल पे कोई पॉलिसी लाना चाहते हैं। देखिए वो बात अलग है। अगर मेघालय, अरुणाचल, हिमाचल कोई अपनी पॉलिसी स्टेट लेवल पे लाते हैं, क्योंकि जिसको इंग्लिश में कहते हैं वन शू फिट्स ऑल कभी नहीं हो सकता। तो एक तो वो नहीं हो सकता, दूसरा हमको जो ओईसीएम को लेके बात चल रही है, केस बाय केस अप्रोच। हमारी इच्छा हमने बात जाहिर कर दी, कम्युनिटी की भी बात हमने जाहिर कर दी, लेकिन क्या कोई सीसीएस जिस स्थिति में वो है, क्या वो ओईसीएम बन सकता है कि नहीं बन सकता, उसका हमें मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई आपको बड़ा साइंटिस्ट नहीं चाहिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से जाने के लिए। आपको सिर्फ कम्युनिटी से चर्चा करनी है कि भाई आपके लैंड रिकॉर्ड्स में क्या कहते हैं, आपकी सहमति है कि नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट अंग्रेजी का बड़ा भारी वर्ड है, लेकिन यथार्थ के अंदर जिसको हम फिर इंग्लिश में कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट, हमारे को मन से ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम समुदाय के पास जा रहे हैं तो उन समुदाय को हितों की रक्षा, उनके एम्बिशंस की रक्षा, उनके इच्छाओं की रक्षा हमको करनी है। तो अगर उसके अंदर हमें कोई एरिया ऐसा मिलता है जिसमें कम्युनिटी तैयार है, तो वो हम आगे ओईसीएम के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं। और मैं अभी भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूं, मैं कह रहा हूं पोटेंशियल ओईसीएम। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि हर आदमी फिर बाद में पूछेगा कि सर ये कैसे होता है। तो पोटेंशियल ओईसीएम मतलब कि हमारी सोच है आज आज हम 2026 में हैं, अगले 3-6-8 महीनों में कुछ पायलट्स रन करें। कुछ मैंने ऑलरेडी कहा कि कुछ राज्यों में अंदर हम पायलट्स रन करके देख लें, वहां पे देखें कि कम्युनिटी किस तरह से आगे बढ़ रही है। अरुणाचल मेघालय से क्या देख सकता है, मेघालय असम से क्या देख सकता है। निश्चित रूप से कम्युनिटीज के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता है, और उस क्षमता को हमें हार्नेस करना है हमारे कंजर्वेशन एस्टेट को बढ़ाने के लिए। Thank you, Dr. Mathur. Our next धन्यवाद डॉक्टर question is माथुर। for Dr. अगला सवाल Balodi ji. डॉक्टर बलोदी जी के लिए है। Dr. Balodi, how much funding support does the One Panchayat receive from the वन Forest पंचायतों को Department? फॉरेस्ट Are One डिपार्टमेंट से Panchayats कितनी involved in फंडिंग सपोर्ट Campa मिलती है, related afforestation? और क्या Over to you, कैंपा की Balodi. रिफॉरेस्टेशन में भी वन पंचायतें शामिल हैं? डॉक्टर बलोदी जी से सवाल है। थैंक यू नेहा। जे- अगर हम बात कर रहे हैं फंडिंग सपोर्ट की Sorry, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो इसका कोई एक डॉक्टर नहीं बलोदी जी, इस डॉक्टर बलोदी जी, हम सुन नहीं पा रहे आपको। पॉपुलेशन के बेस पे हम फंडिंग देते हैं, तो उस तरह डॉक्टर बलोदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक कुछ नेटवर्क इश्यू है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू
Dr. अगला Vishesh सवाल Uppal. डॉक्टर विशेष उपल जी से लेते हैं How क्योंकि बलोदी जी communities की can आवाज नहीं आ access पा रही है। direct funding, especially हाउ the GBBF and the GBBF conserve से project डायरेक्ट area funding has been. कैसे मिल सकती है? Over to you, GBFF, Dr. you mean Yeah. GBFF, right? The Global Biodiversity Framework Fund, right? Yeah. GBFF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड Actually, से yes, उस फंड पैसा कैसे मिल में सकता है? 30% allocated है directly for local actions by IPLCs. But I think what I know, I may be wrong, ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा कि it needs some sort of a national endorsement. And वो क्योंकि so because ये जो एलोकेशन है इसमें कुछ एंडोर्समेंट चाहिए और उसमें जेफ एजेंसीज भी इन्वॉल्व है. सो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को भी वो विदाउट चेकिंग और सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग कोई किसी को भी फंड दे देंगे. प्लस हमारे देश में एक और मुश्किल हो गई है कि वो आई डोंट नो इफ इट्स कंसिडर्ड एज अ यूएन फंड विच डजंट नीड एफसीआरए. अगर एफसीआरए लॉज उसमें आते हैं तो फिर आपको एफसीआरए का आपके पास होना चाहिए, तभी आप वो एक्सेस फंड्स कर सकते हैं. तो या दैट्स व्हाट यस नीमा हैज एडेड टू दैट कि एफसीआरए एक्चुअली जो प्रावधान है उसके लिए पहले आपको अपना एफसीआरए का लेना पड़ेगा, अकाउंट खोलना पड़ेगा, तभी आप ये एक्सेस कर सकते हैं. और ये एक्सेस किसी के थ्रू ही होगा. देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ एन एंडोर्समेंट. पर वो मैं whoever has answered मैं ईमेल आईडी अपना डाल देती हूँ चैट में. प्लीज राइट टू मी, आई कैन फाइंड आउट डिटेल्स एंड लेट यू नो. ठीक है. दिस प्रोजेक्ट कंजर्व, देयर इज नो नेशनल प्रोजेक्ट कंजर्व, राइट? तो आई एम नॉट श्योर कौन से कंजर्व प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है. So ये चैट में like I said, I'll add my email ID. प्लीज राइट टू मी डायरेक्टली. मैं ढूंढ ढांड के बताती हूँ आपको जवाब. ठीक है. Thank you, ma'am. I think Dr. Balodi's network is better now. Dr. Balodi, can you please answer the question? Over to you, Dr. Balodi. जैसा कि आपका ये प्रश्न था कि क्या वन पंचायतों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फंडिंग का कोई प्रावधान है, तो प्रावधान है. कुछ फंडिंग वन पंचायतों को मिलती है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है कि कितनी मिलेगी. जैसे हमारी अगर हम बात करें पंचायतों की, तो उसमें आपके पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से आपको फंडिंग आती है. लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको फंडिंग आती भी है, अगर मैं अपनी वन पंचायत की बात करूं, तो 1-1.5 लाख रुपए अगर आता भी है, तो सरपंच को अगेन पूछना पड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि इसका हम अब क्या करें. तो एक ये इशू है. दूसरा वो जो है अपने मन से या अपने जो वन पंचायत है उसके हिसाब से उसको खर्च करने में भी थोड़ा घबराते हैं. दूसरा ये है जो आपने कैंपा के विषय में पूछा कि क्या उसमें जो एक्टिविटी होती है उसमें वन पंचायतों का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से और जो मैं देख पा रहा हूँ अपनी कम्युनिटी में, ये उस लास्ट पॉइंट पे बताया जाता है कि आपके वन पंचायत को प्लांटेशन के लिए चुना गया है या यहाँ पे ये एक्टिविटी होनी है, आप इसमें इन्वॉल्व होना है. तो मतलब डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है इन द बिगिनिंग ऑफ दिस होल प्रोसेस, वो हमको थोड़ा लेट में बताया जाता है, या फिर जब डिसाइड हो जाता है कि बस आपको करना है, तो ये एक इशू है. Thank you, Dr. Balodi. Thank you to all the speakers for your responses. With that, I think we have now come to the end of our webinar.